हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग म्यूट पे हो एंड दैट इज बाय डिजाइन। हम लोग बाकी लोगों के लिए वेट करते हैं एंड देन शुरू करेंगे आज का सेशन। बहुत ही अच्छा दिन है आज। एफआई से इन्वेस्टमेंट करा है हमारे यहाँ पे, सो उस सब का फायदा उठाएंगे हम। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं आप यू कैन रेज हैंड्स like always. All the presentations that we've had, you can raise hands. This is being recorded. uh, if you're not able to talk, you can type in the message. Do allow me to finish one slide at a time. एक स्लाइड खत्म होने के बाद अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा हम सबके लिए, सो दैट मैं अपना फ्लो कंटिन्यू कर पाऊँ और जो पॉइंट बतानी है उसके ऊपर बता पाए। मैं अभी 5-10 मिनट के लिए पॉज करूंगा एंड वील वेट टिल 6 o'clock. I'll just stop the my voice and I'll just set up everything. 6 o'clock को हम लोग शार्प शुरू करेंगे। Sharp 6 o'clock. We are starting now, and hopefully, more people will join in, and as we speak, pick up steam on this. Um, Let me just start the presentation first. I'll connect you guys with my screen. Right. So, basic introduction of our strategies. I mean, we do it all the time, and that is very important because we use certain keywords. So, gamma strategy जो है हमारी buying की strategies हैं, intraday and positional, mostly positional. थीटा strategies जो हैं वो non directional हैं या basically straddle या strangle. इनमें limited counter and multiple counter strategies are there, while zeta are basically intraday and positional direction selling. Intraday is currently not live, but positional direction selling is what is live, and we have delta strategies, which are positional futures and cash strategies as well. Apart from that, we have some experimental strategies into those strategies which are on MCX market. We will talk about those strategies when the right time is there, and we can look into that from a capital management point of view as well. So when we talk about capital, when we talk about risk management, first of all we have to define the risk कि हमारी रिस्क क्या है। हम लोग रोज का कितना लूज कर सकते हैं या पूरे महीने का कितना लूज कर सकते हैं, हमारा कितना परसेंटेज कैपिटल पोजिशनल में होना चाहिए। A positional strategy and intraday strategy both have some very different dynamics in terms of how DD you will see and how that DD will come. अगर किसी पोजिशनल स्ट्रैटेजी में फॉर एग्जांपल 10% का डीडी है तो वो 10% का डीडी जनरली एक ही दिन में आ जाएगा, लेकिन वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में वो जो 10% का डीडी है वो 4-5 दिन में आ जाएगा। फर्क इसमें सिर्फ यही रहता है कि when it comes within a period of time you are able to absorb and understand कि मार्केट में क्या हो रहा है, is it the market or is it the strategy, and most of the times it is a market, which is a reason why something like this has happened. In case of directional क्या हो जाता है, the same thing changes and it is just one wrong direction, right? डायरेक्शनल की सबसे बड़ी रिस्क होती है डायरेक्शन लेना, जो उसका काम ही है। राजेश जी मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जस्ट ये स्लाइड खत्म कर रहा हूँ, फिर आई विल टेक योर क्वेश्चन।
सो डायरेक्शनल की सबसे बड़ी बात ये होती है। तो अगर हम डायरेक्शनल कर रहे हैं तो हम अपना परसेंट पोर्शन, अपना कैपिटल का कितना पोर्शन डालेंगे। एग्जाम्पल, थर्सडे को डिफ जो हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी है उसने पोजीशन ली, इट वाज इन 2% प्रॉफिट। उसका रीसेंट टाइम का ड्रॉडाउन है 6.5%। एंड तो फ्राइडे मॉर्निंग ओपन, मार्केट ओपन अगेंस्ट द डायरेक्शन, उसने 4.5% का एसएल लिया एंड दैट ड्रॉडाउन केम, बट दैट वाज विद इन द ड्रॉडाउन रेंज। 6.5% का ड्रॉडाउन उस दिन आया, उस रेंज में आया। बहुत लोग होंगे कि वो बोलेंगे अरे इतना बड़ा ड्रॉडाउन आया, मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मैं उसको बंद कर दिया, लेकिन उसमें 3.5% का रिकवरी भी आ गया सेम दिन में। So that is what a position strategy has a potential of doing. So you have to just define the risk of how much you want to put in position, so that even if there's 10%, 20% DD comes in a single day, एक ही दिन में उतना DD अगर आ रहा है तो भी आपका साइकोलॉजी या आपकी मेंटालिटी उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही है. That is what you have to see. And of course that will also make you calm when the SGX is jumping here and there. SGX के बारे में मैं नहीं ना ही बोलूं तो ज्यादा बेटर है, हम सबको पता है कितना बेवफा है. I like using slang, so don't mind that. So again, the third point on defining your risk is, are you willing to accept a DD? जब तक आपने DD को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इतना DD मेरा हो सकता है, तब तक आप नेक्स्ट ट्रेड पे मूव ऑन नहीं कर सकोगे. आप यहाँ तो स्ट्रेटेजी पॉज करके बैठ जाओगे, या आप या तो कुछ उल्टा कर लोगे, उस स्ट्रेटेजी के उल्टे चले जाओगे, या स्विच कर लोगे एक और स्ट्रेटेजी में जिसने उसी दिन प्रॉफिट कमाया होगा और अब मतलब आपको लगेगा और प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा. तो ये जो चीजें हैं ना, वो तभी शुरू होती हैं जब आपने डीडी को एक्सेप्ट नहीं करा. आपको सबसे पहले अपने डीडी को एक्सेप्ट करना है. आप अपना प्लान जब बनाओगे ट्रेडिंग का, एल्गो ट्रेडिंग का जो प्लान बनाओगे, उसमें आप डीडी को एक्सेप्ट करोगे, उसको अपना कैपिटल के साथ जोड़ोगे, उसको स्पेस दोगे कि एल्गो उस तरीके से परफॉर्म करे उस डीडी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के कितना टाइम आप ड्रॉडाउन को आपको इफेक्ट नहीं कर सकता है. एंड उसका एक ही तरीका है कि अगर ट्रेडिंग आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो तो. अनफॉर्चुनेटली हम काफी लोग हैं ऐसे जो कोविड के बाद जिनके लिए ट्रेडिंग इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, इंक्लूडिंग मी. तो हम ट्रेडिंग से ही हमारा पैसा आता है. तो बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना ड्रॉडाउन हमें नहीं चलेगा, कितने दिन का ड्रॉडाउन चलेगा. इट इज फाइन. आई बीन शेयरिंग विद सम पीपल. मोस्टली अप्रैल में मेरा पर्सनली 1 अप्रैल को अच्छा रिजल्ट आया. उसके बाद से almost every day has been flat and just been paying the brokerages. But that has not affected me because I know there will be certain days that there'll be there because I have a positional allocation. Position will give me return certain day. My non-directional did not work earlier, so it will recover in the second half. So these are calculations that I've done. So that's how it is. There was a question from someone because I finished the slide. So Rajesh ji the kaun tha? Whoever had raised their hands, can you raise your hand again so that I can take it up? कोई भी नहीं है. दीपंजन और विक्रांत, अगर कोई भी ग्रुप में क्वेश्चन हो ना प्लीज मुझे बताइएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द ग्रुप. ठीक है. Just 1 minute, I'm just checking few things. Okay, सेकेंड पार्ट आते हैं. रिटर्न्स हमेशा सेकेंडरी होते हैं. वो बिजनेस का, एक तो बिजनेस का कॉस्ट हो गया जो हमारा डीडी है, और ये जो बिजनेस का रिटर्न है वो हमारा कस्टमर डिसाइड करेगा. मैं बिजनेस के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. सो इट विल बी अवर कस्टमर और इट विल बी द मार्केट फोर्सेस व्हिच विल डिसाइड. आई एम अ कमोडिटी ट्रेडर, तो मैं जनरली मार्केट फोर्सेस के ऊपर बात करता हूँ. कस्टमर बाद में आता है. पहले तो मार्केट जो बोलता है कस्टमर वही देता है. सो जो मार्केट बोलता है वही आपको आपका कस्टमर या एल्गो या ब्रोकर देगा या आपका स्ट्रेटजी देगा. तो मार्केट क्या बोलता है? मार्केट
में आप कितने कंफर्टेबल हो, वो डिसाइड करता है कि आप कितना रिटर्न लोगे. The comfort that you have in a strategy when it takes a position, when a strategy is losing, and the position that it takes when it's losing, or when the strategy is winning and what it does when it's winning, that basically defines how you're comfortable with that strategy. उसके लिए हमेशा सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है M2M फ्लक्चुएशन देखना. आप सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, M2M फ्लक्चुएशन देख रहे हो. कई लोग बोलते हैं कि हम नहीं देखते, बट नहीं देखना या नहीं देखना चाहिए. मैं उस चीज पे, हम लोग उस चीज पे नहीं बोलेंगे आपको. एक्चुअली आपको अपनी मेंटालिटी वैसी बनानी है कि अगर आपने देख भी लिया, क्योंकि होगा यार, किसी दिन मार्केट 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा और नहीं करके भी आपको खोलना ही पड़ेगा, खोल ही दोगे. तो यू कैन नॉट think of a situation where you will not panic. So how do we plan that? We have to simulate that. We have to test our mind and train our mind with that situation, and that has to happen algo by algo. It doesn't happen with any. Algo is nothing but a strategy, right? It's a strategy, it's a system. उस सिस्टम में क्या हो रहा है ऊपर नीचे, वो सिस्टम ही बताएगा आपको. मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पीएनएल, मेरी बातें कुछ भी नहीं बताएंगे आपको. जो बताएगा वो सिस्टम ही बताएगा. तो आपको पेपर ट्रेड करना या लाइव डिप्लॉयमेंट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 हफ्तों के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली हम लाइव कमेंट्री भी नहीं दे सकते, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना ही हम लोग इतना स्पैम करना चाहते हैं आपको कि आप लाइव कमेंट्री देखो. अच्छा, ये एल्गो ने ये किया, वो किया. कभी कभार हम कर लेंगे, बट देयर इज नो पॉइंट टू डू इट अगेन एंड अगेन. So you have to do it yourself. So you have to spend time with the algo, with these fluctuations that you see. The other thing is return भी जो अगर आपको आ रहा है वो एक consistent return है या whipsaws के साथ return है. Consistent return आपका कोई किसी भी strategy में आ सकता है, selling हो, buying हो, scalping हो, किसी में भी हो सकता है. whipsaws भी किसी भी strategy में आ सकता है. तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे, आपके अर्ज ऑफ डूइंग एन एक्शन ऑन द एल्गो, वो आपको समझना पड़ेगा खुद को. एंड दैट इज व्हाट यू सिमुलेट. सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, अ लॉट ऑफ प्लानिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू नीड टू डू. अगर बाइंग स्ट्रेटजी है तो हमेशा उसमें सक्सेस रेट से ज्यादा क्या उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. उसके कई तरीके हैं, मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा भी. बट बेसिकली एक कोई बाइंग स्ट्रेटजी होती है, उसका गेन, एवरेज गेन ज्यादा होना चाहिए एवरेज लॉस से, तभी जाके वो आपको अच्छा रिटर्न देगी. अंकुर, आपको क्वेश्चन है? अभी मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज, मैं जस्ट फिनिश कर रहा हूँ इस पार्ट को एंड आई विल टेक दैट क्वेश्चन. सो कोई भी बाइंग स्ट्रेटजी है तो उसमें हमेशा गेन ज्यादा होना चाहिए लॉसेस से, बिकॉज उसका ऑड्स हमेशा कम होते हैं. एंड वील गो थ्रू द डेटा ऑन आवर स्ट्रेटजीज. एंड हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, हम लोग किसी और का कंपेयर नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज की बात करेंगे. वी शो यू हाउ दे आर. Second is one thing which I personally feel is very very important is the daily return risk to return ratio. तो जो लेट्स से परसेंटेज ऑफ सक्सेस है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. जनरली एक बाइंग सिस्टम का परसेंटेज ऑफ सक्सेस 60-40 होता है, 60 टुवर्ड्स लॉसेस एंड 40 टुवर्ड्स गेन्स. एंड सेलिंग का जो होता है वो 60-40 होता है, 60 टुवर्ड्स गेन एंड 40 टुवर्ड्स लॉसेस. Odds in option selling, there are only 3 things that in options there are only 3 things which will happen. Either price ऊपर जाएगा, और प्राइस नीचे जाएगा, या प्राइस सेम रहेगा. I'm not considering the effect of expiry, उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, बट ये 3 चीजें होंगी. तो बाइंग में एक ही कंडीशन में आपका फायदा हो सकता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 33%. जबकि सेलिंग में 2 चीजों में आपका फायदा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 67%. सो जनरली आपका जो बाइंग का सिस्टम होगा वो 33% के आसपास ही होगा. कोशिश हम लोग बहुत कर सकते हैं, बट इवेंचुअली वो वैसा ही आएगा. एंड जो सेलिंग का सिस्टम होगा, कितना भी करेंगे, कई बार कोई ऐसा ड्रॉडाउन भी आ जाएगा, कोई किसी मंथ में कुछ ऐसा भी हो जाएगा, कितना भी 70% 80% भी करेंगे, इवेंचुअली इट कम डाउन टू 80% 90% भी करेंगे, इट कम डाउन टू 70%. So this is how the systems would work, and we look into the data on this, and then analyze this thing and take questions from you. तो ये मैच, ये
देखना, ये समझना एक स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग को ट्रेड नहीं करना, एंड जनरली उस टाइम पे ट्रेड रिटर्न अच्छे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड डू इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल कि ये चीजें होती है मार्केट में कि जब हम लोग बोलते हैं यार नहीं बहुत गंदा दिन है आज, तो यार आरबीआई की पॉलिसी हम लोग को ट्रेडिंग करना, उसी दिन सबसे अच्छा टिके होता है। आज तो यार बजट है, पता नहीं क्या हो जाएगा यार, ये तो मतलब निर्मला कैंडल आ जाएगी, उसी में ही निर्मला कैंडल आएगी ना, तो उसी में ही सबसे अच्छा डीके मिलेगा आपको। तो ये जो चीजें है ना, हमेशा इसको हमको समझ के अपना प्रॉपर अलोकेशन रखना चाहिए, एंड इसी से ही हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम्स में। लेस ट्रेड्स हमेशा बेटर होते हैं स्मूथ कर्व से। स्मूथ कर्व के बहुत रीजंस होते हैं, बहुत तरीके होते हैं कि स्मूथ कर्व्स बनते हैं, बट अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपके हमेशा स्मूथ कर्व बनेंगे। मेरी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं बना चुका हूँ जो मुझे लगा था बहुत बढ़िया थी ऑन द बैक टेस्ट, बहुत बढ़िया स्मूथ कर्व, 700-800 ट्रेड्स, एंड फेल्ड बैडली इन द लाइव मार्केट्स बिकॉज द मोर द ट्रेड्स, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जहां पे आपने अगर लॉन्ग जाना था, बिकॉज जो आपका बैक टेस्ट है वो उसके हिसाब से उसने 1 मिनट का कैंडल देखा है, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। उसने कुछ पर्टिकुलर चीज देखी है और आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो लॉन्ग नहीं गया, तो वो दैट विल नॉट शो इन योर बैक टेस्ट, एंड एक्चुअली यू विल लूज इट। सो लेस ट्रेड्स वाली स्ट्रेटेजीज, लेस not essentially a smooth curve wali strategy is something that you should look into. I'll start taking questions. धनंजय के पास एक क्वेश्चन है. I'm sorry, there was someone else earlier as well, but अभी मुझे धनंजय ही दिख रहे हैं. धनंजय, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं and you can ask a question. धनंजय, you can ask your question. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को. माइक के आइकन. Am I audible to you? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, एज आपने अभी बताया कि जो स्ट्रेटेजी एलोकेशन है, डायरेक्शन है या नॉन डायरेक्शन है, व्हाट इज इट? आपका स्ट्रेटेजी धनंजय, आपका आवाज कम आ रहा है मुझे. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट. एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ. हाँ, सो मुझे ये पूछना था कि जो एलोकेशन है, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर मे बी द डे ऑफ इन अ वीक, आज allocation, suppose if a person is having 20 lakhs and you decide, okay, you go with the strategies which are showing कि आप पूरा बताते हो कि 6 से 7 स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल पोजिशनल जो भी है वो लगाते हो. सो ऑन हाउ यू पैरामीटर यू डिसाइड कि आज 7 ही लगानी है, कल 9 लगा सकते हैं. सो इज इट ऑटोमेटिकली गेट इट एलोकेटेड या आप डिसाइड करते हो मार्केट के अनुसार, और क्या पैरामीटर आप यूज करते हो पर्टिकुलरली? मैं आपको वो चीजें मतलब बताऊंगा. आइडियली आपका जो अलोकेशन है ना, वो वीक बाय वीक के लिए अलोकेशन होना चाहिए, वीक का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, क्योंकि वीक में अच्छा. इवेंट्स जो हैं वो आपको पता है, तो आप अपने हाँ. वीक के हिसाब से प्लान बनाइए. अगर आपको पता है कि बजट आ रहा है और आपको पता है कि प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग ऑप्शन सेलिंग. बजट जब आएगा, जिस दिन आएगा उससे एक दिन पहले, जनरली उससे एक दिन पहले प्रीमियम्स बढ़ते हैं और सबका नुकसान होता है सभी चीजों में. यस सर. ठीक है, तो उस दिन आपको ऑप्शन सेलिंग करने का लॉजिक नहीं बनता, तो आप क्या करोगे उस दिन? या तो आप अपने सिस्टम को पॉज करोगे या वो करोगे, राइट? सो दैट्स हाउ यू प्लान, के पूरे वीक अहेड में प्लान करेंगे. बट उसके अलावा जो बजट का नेक्स्ट डे है, वहां पे बहुत बढ़िया डीके होता है. अगर पहले आपका एसएल हिट भी हो गया, लेकिन जो 11 बजे के बाद डीके होगा वो ऐसा डीके होगा जो आपको मजे दिला देगा. यस 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 विशाल. तो वो चीजें हमारे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो प्लान से आता है. वो आपको एक पूरा इवेंट देखना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा. देयर आर अदर टूल्स दैट आई विल शेयर विथ यू, कि जहां पे आपको आप खुद ही वो चीज डालोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि मैं आपका ध्यान से लॉस देख रहा हूँ, डिफाइंड हो. आपके मार्च महीने से ध्यान से देख रहा हूँ, कभी भी स्ट्रेटेजी का नंबर चेंज होता है, तो मुझे ये पूछना था बहुत दिनों से. सॉरी, मे बी इट इज नॉट रिलेवेंट राइट नाउ, बट आई वाज अर्ज्ड टू आस्क यू राइट नाउ ओनली. बोलिए बोलिए. मुझे यही चीज पूछना था जो अभी मैंने आपको पूछा, क्योंकि मैं आपका मार्च महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कंप्लीट अप्रैल ऑल्सो आई ऑब्जर्व,
द वे यू एम्प्लॉय द स्ट्रेटेजी कभी चेंज होता है उसमें। सो यही पैरामीटर जानने थे कि आप किस पैरामीटर पे डिसाइड करते हो, या मार्केट के हिसाब से मॉर्निंग में चेंज करते हो क्या, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है नहीं करना है। सो गॉट योर पॉइंट। सर मैं तो बहुत ही इन लेट्स से एक्सपेरिमेंटल ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं यस आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी भी बना रहा हूँ। यस यस तो यस। मैं अपना जो पोर्टफोलियो है उसका 80% जो है वो हमेशा फिक्स रखता हूँ, एंड देन यस 20% में मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बिकॉज जब तक मैं वो लाइव में ट्रू। एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो आपके लिए अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं बना पाऊंगा। यस यस, आई कंप्लीटली एग्री। तो मेरा आई माइट नॉट बी यू नो लेट्स से इफ यू ट्राइंग टू से कि यार आप क्या करते हो, तो आई माइट नॉट बी अ राइट रोल मॉडल इन दैट सेंस। एटलीस्ट 80% ऑफ माय पोर्टफोलियो वुड बी राइट, रेस्ट विल नॉट बी। यस यस। So this is how it is. But yes, if you talk about what is my 80% of the portfolio, वो पूरे वीक के लिए सेम रहता है, ओके। it doesn't change। इट डजंट चेंज। ओके। हाँ, एंड उसके ऊपर भी पूरे हाँ मंथ के लिए या मेरा पूरा जो स्टाइल है उसके हिसाब से हाँ। भी एक रेशियो है, उसके ऊपर रहता है। I'll come on to that, एंड वो आप अपना चूज यस कर सकते हो। जस्ट यू नो पुट अप एंड आप वो चूज करोगे, आप अपना वो नंबर्स डालोगे, आपका खुद का निकल जाएगा। आप खुद का एक्सीलेंट पोर्टफोलियो एक्सीलेंट। कैसे मैनेज कर सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज एक्सीलेंट सर। यस यस। ठीक है, लुकिंग सो फॉरवर्ड आई टू। जस्ट टेक अनदर। Sorry. I muted you. I thought you were done with your question. धनंजय आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। No, it's सॉरी, okay. वेरी I'm done. सॉरी। It's okay. I'm done. अच्छा I'm ठीक done. है, I'm ठीक है, listening you. ठीक Yeah. है, ठीक है, just 1 minute. So struggling to become a trader, a very good name for this webinar. So sir आपका नाम Thank बता you. दीजिए पहले। My name is Nasim Malik. Good evening, Sorry, sir. My name is Nasim Malik. Good evening. good evening sir. Are you audible? आप सुन पा रहे हो? Yeah, I can hear you. हाँ सर, मैं बोल रहा था, मैंने नोटिस कर रहा कुछ मंथ से मार्केट तो डायनामिक है, थोड़ा डायरेक्शनल पे मूव कर रहा है। तो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है पूरा डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी मार्केट प्लेस में भी, तो आपका भी है जैसे जेटा इंडेक्स है, जीप वगैरह। तो सर आपका कुछ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी इंटरडे बेसिस पे है? सर आज हम लोग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हमारा कोई डायरेक्शन स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए नहीं है, बट क्योंकि आएगा सर तो हम आपको वही बताएंगे। मैं बट बोल आज रहा हम लोग सर, नहीं स्ट्रेटेजीज नहीं सर, मैं यही बोल रहा था क्योंकि सर पोजिशनल स्ट्रेटेजी क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जो प्रॉफिट कमा रहा है वो ओवरनाइट कमा रहा है, ठीक है। हाँ एंड जी, ओवरनाइट में सर जो गैप अप या गैप डाउन, ये कोई स्ट्रेटेजी का हाथ में तो नहीं है, और वो हमारे हाथ भी नहीं है, ये वर्ल्ड मार्केट एंड जितना भी न्यूज है उसके हाथ में। तो लाइक ए लॉटरी, ठीक है, मतलब नहीं ओवरनाइट गैप अप कभी हमारा फेवर में भी ओपन होगा, कभी हमारा फेवर में भी नहीं ओपन होगा। आई विल डिसएग्री विद दिस कंप्लीटली। जो आप बोल रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट के ऊपर है, आप एक बार चार्ट देख लीजिए ना। वर्ल्ड मार्केट आपको क्या कह रहा है। अक्टूबर में 18,600 का हाई हुआ था, उसके बाद से मार्केट कर क्या रहा है, पूरा वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी बोल रहा है कि हम एक डायरेक्शन में नीचे जा रहे हैं, कहीं पे स्टेबल हो रहा है, कहीं पे आएगा एसएल हिट होएगा, बट निफ्टी यही बोल रहा है कि जी मैं वीक हो रहा हूँ, और वो हाँ, बट हर सर जो स्ट्रेटेजी सेंस करती बट जो गैप अप एंड गैप डाउन जो होता है, गैप तो न्यूज के वजह से होता है ना। है। हाँ, जो बिग न्यूज गैप की अप वजह गैप से डाउन, होता है, स्मॉल गैप अप गैप डाउन में तो स्ट्रेटजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ओवर है। सोल्ड की वजह से होता है। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली। अगर हम लोग ये तो बोले कि कभी मार्केट कभी का कभी स्ट्रक्चर कभी वीक है, ओवरनाइट नहीं सर, आप ये तो मानते हो जितना भी क्रैशेस आता है, जितना भी आता है, जितना भी जो भी आता है बिग न्यूज, और ओवरनाइट में आते हैं, ठीक है, मतलब नहीं मार्केट सर, के टाइम मार्केट आवर जरूरी में नहीं नहीं है, आते, आपको भी पता है। जरूरी नहीं है सर। 2 दिन मार्क पहले की बात है, उस वेडनेसडे की बात है, फ्लैश क्रैश हो गया था। मतलब बैठे बैठे कैसे जी मार्केट नीचे गिर गया, 1000 पॉइंट चला गया 10 मिनट के अंदर, हमको नहीं पता चला। सर वी कैन नॉट आप उसको डिसाइड। क्रैश बोलते हो? सॉरी, 200 पॉइंट के नीचे क्या उसको क्रैश बोलते हो? 200 पॉइंट नहीं, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरा विद इन 15 मिनट्स, 3%। That is not a small move for intraday. So I think again, sir, it's a debate
कि मुझे इंट्राडे करना है या डायरेक्शनल करना है या क्या करना है, हर किसी का खुद का है। मैं तो एक्चुअली ये बोलना चाहूंगा यार, हमसे इंट्राडे डायरेक्शनल तो आज तक हुआ नहीं। हमारे हिसाब से तो इंट्राडे नॉन डायरेक्शनली बेटा कर रहा है और पोजिशनल में डायरेक्शनल बेटा कर रहा है पोजिशनल में। तो हम लोग उनके पास तो वही है। अगर कुछ होगा डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये रिस्क लग रहा है, योर माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट रिस्क एंड यू डोंट वांट टू डू गैप अप गैप डाउन रिस्क, देन यू आर अ कंजर्वेटिव टाइप। यस सर, सो इट्स फाइन, यस सर। दैट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल, एम्ब्रेस इट। आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जब तक एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर से अगर आपको मीडियम रिस्क वाला बनना है जो थोड़ा बहुत ओवरनाइट जाएगा, उसके लिए आपको इंट्राडे में आपको सक्सेस चाहिए पहले। तो ये जो चीजें हैं, सक्सेस हो या लॉस हो, नहीं सर, आप ये तो सर बता सकते हो जो पोजिशनल स्ट्रेटेजी है ये पूरा कैपिटल का कुछ हद तक परसेंटेज ही डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई बंदा फुल कैपिटल के साथ डिप्लॉय करेगा तो उसको वाइप आउट भी हो सकता है ना सर, ब्लैंक आउट भी हो बिल्कुल सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोली आपने। So और इसी रीजन की वजह से मैंने ये वेबिनार कराया। जी सर, तो मैं इसलिए बोल रहा था, देखिए सर, अगर मेरे को डायरेक्शन करना है इंट्राडे में तो इसमें जो भी है लॉस ऐसा होगा कि आप उसको बेयर कर सकते हैं, ठीक है सर। बट सर पोजिशनल में आप अच्छा बहुत सही प्रॉफिट बात देगा, बोला सर, मैं आपका बात में एग्री हूँ। हाँ, लेकिन आपने जो चीज बोली खुद ही बोली, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। जो गेन आया है वो ओवरनाइट आया है, वो फैक्ट है। अगर गेन आया है, ओवरनाइट आया है, तो इंट्राडे क्यों बनाऊंगा मैं? और मेरे से नहीं बनी भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे से नहीं बन रही। बनेगी तो आपको बताऊंगा। मुझे भी तो अपनी स्ट्रेटजीज को मार्केट करना है। नहीं बनी भाई, जब बनेगी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको, सीना ठोक के बताऊंगा। जी सर, ठीक है सर। अच्छा, आई एम इंटरप्टिंग फॉर अ मोमेंट। बहुत लोग ये वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो विल इट बी पॉसिबल टू स्टार्ट इट, लाइक रिस्टार्ट कर सकते हैं इसको, लाइक दूसरा वेबिनार करके? ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या इशू आ रहा है पंजन? लाइक उन लोगों का लाइक टाइमर नेगेटिव में चल रहा है, लाइक ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है बहुत लोगों का, तो मे बी उन लोगों का कुछ क्वेश्चंस रह सकता है, तो वो लोग लाइक पूछ नहीं। 1 मिनट तो लाइक ये वेबिनार को एंड करके नया शुरू करते हैं, तो यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन दैट प्लीज। सॉरी and sorry for this inconvenience, guys. Please bear with us. Right, so I've just started the recording and some of you are unmuted. Please be on a sequence while we'll just try and make sure that it is as per the rules. I'll start the screen recording again. So last question हम लोगों ने आंसर करा था। इसके बाद किसी और को क्वेश्चन है? Can you raise your hands, or if you are already unmuted, one by one, if you can talk. Okay, most of you are now muted. So yeah, so you can raise hands and ask your questions. There was someone who had a question, so otherwise I'll continue on the next slide. संजीव भाटिया जी। यस संजीव जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद। क्लियर था? हेलो, हाँ जी सर। मेरी एक सजेशन थी सर। आई फील कि अगर हर स्लाइड के ऊपर में अगर हम Q&A सेशन करेंगे तो इट बी टू लॉन्ग। अगर आप ऐसा, आई थिंक इट इज बेटर कि अगर हम एक बार आपका सारा स्लाइड्स और सबके थ्रू हो जाए, सो दैट फिर एक बार कलेक्टिवली एक घंटे का जो भी आपको Q&A सेशन रखना है वो रख लेंगे, तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। श्योर सर, बट लोग रेस करते हैं हैंड, सो आई हैव टू आंसर एंड we take your suggestion, and I think let's all of us listen to what Bhatia ji is saying. It makes sense. मेरा भी फ्लो रहेगा और हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से इसको कर पाएंगे।
हाँ, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा सर आपका कि जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो इधर उधर जाता रहेगा और की पॉइंट्स कई बार मिस हो जाते हैं सर वो क्वेश्चन आंसर करने में सर। I'll try कि नहीं मिस हो अगर कुछ भी हो तो, but let's continue with this thought and thank you संजीव जी for helping us out. प्रतीक जी अगर कुछ स्लाइड के बारे में क्वेश्चन हो, कोई अर्जेंट हो तो बताइए, वरना फिर आप अपना हैंड नीचे कर दीजिए। स्लाइड के बारे में है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सॉरी सर, स्लाइड के बारे में नहीं था कुछ, कैपिटल एलोकेशन के बारे में कुछ डाउट था सर मेरा। किसके एलोकेशन के बारे में? कैपिटल एलोकेशन कैसे कैसे स्ट्रेटजी सर वो आएगा, वो आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ठीक है, सो जब हमने रिटर्न्स की बात करी तो उसके साथ एक और चीज आती है जो हम देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो है बैक टेस्ट, पेपर ट्रेड और एलए। अब होता क्या है बैक टेस्ट में? जो भी बैक टेस्ट आप टीटी पे देख रहे हो वो 1 मिनट के हैंडल पे चलती है जनरली। कोई 5 मिनट पे भी चलाता है, कोई 10 मिनट पे भी चलाता है, बट जनरली क्रिएटर्स 1 मिनट पे चलाते हैं। उसमें या तो ओपन प्राइस आता है या क्लोज प्राइस आता है। इट डज नॉट इंक्लूड द विक्स एंड द टेल्स, जहां पे हमारे टारगेट्स, हमारे एसएल्स, कई बार एंट्रीज और एग्जिट्स, अगर पीएनएल बेस्ड एंट्रीज हैं और एग्जिट्स हैं तो वो भी हिट होते हैं। सो वी कैन नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन द बैक टेस्ट। बट हम लोग बैक टेस्ट का करते क्या है एज अ क्रिएटर, हम लोग क्या करते हैं और हम लोग उसमें क्या रेलेवेंस है हमारे लिए, और समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बैक टेस्ट में या पीटी में, वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। तो डज इट व्हाट सिग्निफिकेंस डज इट कैरी कि वो ट्रेड लॉजिक के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो ट्रेड के लॉजिक के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर हम लोग किसी नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, इट इज सपोज टू एंटर एट अ सर्टेन टाइम, सपोज टू एग्जिट एट अ सर्टेन टाइम। अगर हम लोगों ने आपको बताया कि इसका एसएल इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेपर ट्रेड में, आपको वो देखना है। नहीं हो रहा है तो आपको अगर डाउट है तो हम हमसे पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक आपका स्ट्रेटजी में कन्विक्शन नहीं आएगा। और एनीवेज दिस इज अ बोरोड कन्विक्शन, आप हमारी स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन कर रहे हो और देयर इज नो वे हम लोग आपको अपनी स्ट्रेटजी पूरी बताएंगे, बिकॉज ये हमारा खुद का आईपी है, हम लोगों ने इस पे कुछ काम करा है। तो इवेंचुअली आपको उस पर कन्विक्शन बनाने के लिए आपको ट्रेड समझना पड़ेगा, लॉजिक नहीं, ट्रेड, कि ट्रेड क्या हुआ, क्यों हुआ। जब आप ये समझेंगे, उसके उसके तरीके होते हैं, हम आपको समझाएंगे उस चीज के, बट जब आप ये समझ लेंगे कि स्ट्रेटजी करना क्या चाहती है, तब आप उसमें बिलीव कर पाएंगे, ना कि एक बैक टेस्ट देख के, ना कि एक पीटी देख के। तो आपको ये चीजें समझनी है। जो ड्रॉडाउन है बैक टेस्ट में, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रॉडाउन लोअर ही दिखाता है बैक टेस्ट, बट जो भी नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी है, कुछ भी दिखाए, 1% दिखाए, 2% दिखाए, इवेंचुअली 5 से 10% का ड्रॉडाउन उसमें रहता ही है। दैट इज गिवन। यू विल हैव अ सिचुएशन जिस दिन आप देखेंगे कि पूरे महीने का ड्रॉडाउन आ गया 5 से 10% का। एंड अगेन जो मैं पहले बता रहा था कि एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी में ये 5 से 10% का ड्रॉडाउन आएगा 3, 4, 5 दिन में, लेकिन एक डायरेक्शन स्ट्रेटजी में ये 20 से 30% का ड्रॉडाउन जो बोलते हैं वो एक ही दिन में आ जाएगा। सो उसका बिहेवियर भी अलग होता है। सिमिलरली अगर डायरेक्शन स्ट्रेटजी का हम लोग ड्रॉडाउन की बात करें तो वो 20 से 30% तक आपको दिखना चाहिए, और बाइंग का भले आपको 5% दिखे, 10% दिखे, किसी भी बैक टेस्ट में हमेशा 50 से 80% समझिए। इट इज रिलेटेड टू द ऑड्स एज वेल। जो हमारे ट्रेडिंग के ऑड्स हैं उसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है। सो एक और चीज है, पीटी और एलए क्यों नहीं मैच होता? तो स्लिपेज है एक बहुत बड़ा फैक्टर। बहुत सारे स्लिपेजेस ऐसे हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा एक जो चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है लो टारगेट्स एंड लो ट्रेड्स या हाई ट्रेड्स। जितने हाई ट्रेड्स होंगे उतना पीएनएल मिसमैच का चांसेस ज्यादा होता है, बिकॉज हर टाइम पे वो चेक करता रहता है और वो 1 सेकेंड स्पाइक में उसने गलत पोजीशन ले ली तो वो पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एल्गो का। बट अगर लो ट्रेड एल्गो है तो वो बनेगा ही ऐसे, लो ट्रेड एल्गो बनेगा ही ऐसे कि वो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड करेगा। तो उस केस में
आपका पीटी और एलए मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल बी सिमिलर। एंड स्लिपेज की बात कर रहे हैं हम लोग अगर, तो स्लिपेज में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, जो एग्जीक्यूशन डिलेज हैं, जो नॉर्मल बिड आस्क स्प्रेड के इश्यूज हैं, वो तो हैं। बट दूसरी जो चीज होती है कि एकदम हम लोग हर्ड मेंटालिटी में जब बाय करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि जब मार्केट गैप अप होता है बहुत बार, तो गैप अप के बाद सीधा इमीडिएटली गिर जाता है। क्यों? बहुत लोगों को लगता है अरे मार्केट गैप अप हुआ है, अरे 100 पॉइंट गैप अप हुआ है, मार्केट और ऊपर जाएगा, तब सब लोग खरीद लेते हैं। ब्रेकआउट आ गया, अरे ये हो गया, वो हो गया, और उस टाइम पे सब लोग खरीदेंगे और तब मार्केट गिरेगा, क्योंकि वो हर्ड मेंटालिटी में सबने खरीदा है। तो जनरली जो आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज दिखेंगी मार्केट में जो सबको पता है, सुपर ट्रेंड हो या मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो, वो सबको पता है, वहां पे आपको स्लिपेज आएगा ही। आज नहीं तो कल, आज नहीं आया, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम थे, या सुपर ट्रेंड 10-3 की जगह पे 7-3 था, या 7-4 था, जो भी नंबर था, उसकी वजह से शायद एक डिले आया, एक कैंडल ऊपर आया, एक कैंडल पीछे आया, उससे बच जाओगे। बट ये आएगा, मोस्टली आएगा ही, क्योंकि वो सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे हजारों इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पे ही बॉट लगाते हैं, अपना उस पे ही अपना एल्गो लगाते हैं, और वो लोग कोलोकेशन करके बैठे, they will always have an edge towards it. In fact, there is a possibility a lot of people are actually making an algo which is anti super trend, या एंटी गैप अप एंड गैप डाउन, कि गैप अप हुआ तो इमीडिएटली वो बेचेगा। वरना क्या रीजन है कि गैप अप होने के बाद इमीडिएटली मार्केट नीचे गिर जाता है? गैप अप होने का मतलब का यही है कि किसी ने खरीदा है, बल्क क्वांटिटीज में खरीदा है, इसलिए गैप अप हो रहा है। किसी ने बाय ऑर्डर डाला है और वो बोल रहा है मुझे पूरा खरीदना है, तब जाके मार्केट गैप अप होता है। प्री ओपन में बाय ऑर्डर डाला, प्री ओपन में बोला मेरे को सब खरीदना है, तो ये जो चीज है ना वो होती है। लेकिन किसी ने अगर उसका उल्टा बनाया है एल्गो, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी सक्सेसफुल होता है। और वैसे भी किसी भी स्ट्रेटेजी की बात करें, हर स्ट्रेटेजी चलती है, हर स्ट्रेटेजी चलेगी, आप लॉन्ग टर्म में चलाएंगे, आपको हर स्ट्रेटेजी पैसा बना के देगी। लेकिन वो स्ट्रेटेजी बिहेव कैसे करती है इन दैट पीरियड, दैट बेसिकली डिसाइड्स आप उसके ऊपर कितना टाइम स्टिक कर पाओगे। तो स्लिपेज की हम लोगों ने बात कर ली, और जो लास्ट चीज है वो है टारगेट्स और हाई ट्रेड्स। लो टारगेट्स और हाई ट्रेड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक चीज है, द एडिशनल थिंग इज अगेन एज आई टॉक्ड अबाउट कि मिसमैच उसमें बहुत ज्यादा होगा। जितने लो टारगेट्स होंगे, जितने हाई ट्रेड्स होंगे, आपका मिसमैच ज्यादा ही होगा, तो उसके ऊपर हमेशा कंसंट्रेशन होना चाहिए। लो टारगेट वाली स्ट्रैटेजी, जैसे हमारी भी स्कैल्पर है, हम लोग क्लियरली बोलते हैं लोगों को कि इट विल हैव ऑपिनियन मिसमैच, सो यू हैव टू एब्जॉर्ब इट। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट विच बहुत लोग जानना चाहते थे कि हम लोग डीडी कैसे मैनेज करें। तो ट्रेडिंग में एक चीज की गारंटी है कि प्रॉफिट मिले नहीं मिले, लॉस तो पक्का मिलेगा। आई थिंक हम सबने एक्सपीरियंस करा है वो चीज, लॉस तो पक्का मिलता है। वो जो लॉस है वो डीडी है, ड्रॉडाउन तो पक्का मिलेगा। लेकिन हम लोग उसको डीडी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको अपना बनाएंगे, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक ट्रेडिंग प्लान की जरूरत है, जिसमें हम लोग कैपिटल एलोकेशन करेंगे। हम अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज डालेंगे। अगर हमारा पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं है, हमारा कैपिटल उतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग वो ट्रेड ही नहीं करेंगे। ना ट्रेड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कभी भी हमारा पोर्टफोलियो का डीडी आ गया, मार्च 2020 में बहुत लोगों का जो पोर्टफोलियो था उसका डीडी आ गया था, इमीडिएटली आ गया था। वी टॉक अबाउट फिजिकल ट्रेडिंग एज वेल, और सबने काट दिया मिड मार्च में, लॉकडाउन के बाद सबने बोला बंद करो मार्केट, ये होगा वो होगा। अप्रैल से क्या हो गया, वी स्टार्टेड राइजिंग अप अगेन। जो बॉटम वाले प्राइसेस थे वो फिर से नहीं आए। तो वो जो चीजें हैं वो हमेशा होती हैं कि हम डेस्परेशन में कि यार अब डीडी आ गया, अरे छोड़ दो, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बना हुआ है ना, तो आपको वो डीडी आएगा ही नहीं पोर्टफोलियो का। क्योंकि अगर मार्च 2020 का फॉल आ गया, विक्स बढ़ जाएगा, आपके ऑप्शन बाइंग का एल्गो होगा, वो आपको फायदा दे देगा, या आपका डायरेक्शनल सेलिंग का एल्गो होगा, वो आपको फायदा दे देगा। नॉन डायरेक्शनल ने आपको नुकसान दे दिया, तो वो चीज होगी।
अगर मार्केट स्टेबल हो गया, कहीं नहीं मूव हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो नॉन डायरेक्शनल आपको फायदा दे देगा। तो ये एक जो स्मूदन कर्व की हम लोग जो बैक टेस्ट में स्मूदन कर्व देखते हैं ना, वो हमें देखना है अपने पोर्टफोलियो में। इट इज नॉट टू बी सीन इन द बैक टेस्ट बट इन अवर पोर्टफोलियो। हम अपने पोर्टफोलियो में कैसे स्मूदन कर्व लेके आ सकते हैं। So that should be our intention with managing the DD and our capital allocation. But at the same time there are some ground rules. SL क्या है हमारा उस केस में भी, तो ये हमारा मानना है, everyone has a different way of looking at it, कि जो आपका बैक टेस्ट आया एज पर BT या पिछला कोई स्ट्रेटेजी अभी रिसेंटली चालू हुई है तो उसका DD कम होगा, या वैसा अगर आपका 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ड्रॉडाउन आया, या रूल्स के हिसाब से जो DD है 20% 25% वैसा DD आया, तो एक बार के लिए आप पहले देखिए कि आपका कैपिटल एलोकेशन कैसा है। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव साइड पे हो उसमें, जैसे हम लोग बीच में बात कर रहे थे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज की, एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड ही हैड अबाउट 70 to 80% नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, व्हाइल अप्रैल में नॉन डायरेक्शनल नहीं चल रहा, तो और उसका ड्रॉडाउन BT से 1.5 टाइम्स चला गया, हमारे जो रूल्स बात कर रहे हैं 5 to 10% नॉन डायरेक्शनल में उतना आ गया, तो क्या करना चाहिए? तो पॉज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई रुको, हम लोग कैपिटल एलोकेशन उसमें कम कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजीज, वो सेक्शन नहीं चल रहा है स्ट्रेटजीज का, लेकिन दूसरा चलेगा। अब अगर आपको फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस है उस स्ट्रेटजी में, वो कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग करके आएगा। अगर आपने देखा कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी रिकवर तो करा है, मैंने पिछली बार कैपिटल एलोकेशन कम करा था, उसके बाद उसने रिकवर करा था, आपको बंद नहीं करना है। आप बंद करोगे तो कभी भी नहीं रिकवर कर पाओगे। और बंद करने के भी मैं रूल्स बताऊंगा आपको कि किस चीज पे आपको बंद करना है स्ट्रेटजी, किस चीज पे आपको देखना है। बट जनरली आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर स्ट्रेटजी ने 6 महीने काम करा है, 5 महीने काम करा है, तो वो काम करेगी। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये गलत ट्रेड ही कर रही है, वो आपके ट्रेडिंग प्लान के अगेंस्ट जा रहा है, आपकी मेंटालिटी को वो अफेक्ट कर रहा है, तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, कोई भी हो, किसी की भी स्ट्रेटजी हो। अगर आपके ट्रेडिंग प्लान को अफेक्ट कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस स्ट्रेटजी की वजह से मेरा पूरा पोर्टफोलियो खराब हो रहा है, तो आपको स्ट्रेटजी बंद करनी चाहिए। DD रिकवर नहीं हुआ, अंडरस्टैंड, बट उसी के रेशियो में कोई और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, कोई और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, समथिंग दैट यू शुड पिक। You should not change the overall portfolio. So that is one thing that I wanted to say. Coming back to the last part, which is the rules of capital allocation. अब इसके बाद जो मेन चीज आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रूल्स जो है हमारे कैपिटल एलोकेशन के लिए, तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम जैसे पर्सनल ट्रेडर्स हैं, हम लोग अपने पर्सनल कैपिटल से ट्रेड करते हैं। हमारे लिए लीवरेज सबसे गंदा एनिमी है हमारे लिए। हमें जल्दी बनना है, हमें जल्दी ग्रो करना है, तो हम लोग लीवरेज लेते हैं। पर लीवरेज का जो कॉस्ट है, लीवरेज को जो जिस तरीके से मैनेज करते हैं हम लोग, वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम लोगों का खुद का माइंड उतना स्टेबल नहीं है एट दिस स्टेज। हम लोग अभी तक पर्सनल ट्रेडर्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके लिए ये सबसे बढ़िया चीज होती है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि मैं एक टाइम पे ट्रेडिंग प्रोफेशनल था, विच इज इक्विवेलेंट टू अ प्रोफेशनल ट्रेडर इन वन सेंस। आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई से दैट। मेरे पास अनलिमिटेड लीवरेज था, कंपनी की तरफ से अनलिमिटेड लीवरेज था, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा था कंपनी की तरफ से, और मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज थी कि मैं चिपका सकता था माल। मैं कमोडिटी ट्रेडर था, so I had liquidity of physical goods. So if I had a long position, I can cut that position. Position काटना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम लोग कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर की बात, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टॉक्स में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको पोजीशन काटना आसान होता है उनके लिए। वो चिपका सकते हैं लोगों को। एक न्यूज आएगा, कुछ आएगा, HDFC का मर्जर हो गया, चिपका दिया, उसके बाद HDFC नीचे चला गया। ये सब जो चीजें होती है ना, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर कर पाता है। अनलिमिटेड लीवरेज है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा एक्यूमुलेट करके उसको लिक्विडेट कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक्सेस होता है प्रिविलेज इंफॉर्मेशन का। वो होता है सबके पास, उसके आप कोई भी नाम दे दो, बट आप उसको एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम भी कह सकते हो, अच्छा ट्रेडिंग
टूल भी कह सकते हो, एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनमें से कोई भी चीज इसमें फिट कर सकते हो। तो मेरे पास ये सब चीजें थी, बट जो एक उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है वो होती है डिसिप्लिन। जब मैं प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा था, मैं प्रोफेशनली कमोडिटीज ट्रेड कर रहा था, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का आरएमएस सिस्टम था जो मुझे बोलता था कि भाई अब हम लोग पोजीशन ज्यादा नहीं कैरी करेंगे, लॉस को काटेंगे। मेरे को लगता है मैं तो बॉन्ड हूं, मैंने तो सब सही करा है, बट ये मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि यार मैंने लॉस काटा था। अगर मैं लॉस नहीं काटा होता तो मैं पोजीशन रिवर्स नहीं कर पाता और ना मैं अपना लॉस रिकवर कर पाता। बट वो आरएमएस की वजह से था, वो एक आरएमएस था, एक ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा खुद का आरएमएस हमको बनाना है, एंड दैट इज व्हाट इज द रियल कैपिटल एलोकेशन, दैट इज व्हाट इज द रियल डीडी मैनेजमेंट। हमने खुद का आरएमएस जिस दिन बनाया कि हमारा इतना रिस्क है और हम लोग इतना रिस्क लेके जा रहे हैं, इसको हम लोग प्राइसिंग कर रहे हैं, तब आपको किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर की, किसी भी पोर्टफोलियो एडवाइस की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रॉम अ पर्सनल ट्रेडर. I've already also gone through it. I mean, I've been trading equities for last 2.5 years. Technicals पे मेरा कमजोर थी पहले, और because मैं फिजिकल ट्रेडर था तो टेक्निकल मैं देखता था, लेकिन आरएसआई से ज्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। तो बस आरएसआई पे ट्रेड करता था मैं, लेकिन उसके साथ मेरे पास जो फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती थी ना कि गुड्स में क्या, या सोयाबीन अगर मैं ट्रेड कर रहा था तो सोयाबीन की क्या अवेलेबिलिटी है, साउथ अमेरिका की क्या वेदर है, क्या, वो इतनी ज्यादा होती थी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोलता था अरे यार आरएसआई बहुत छोटा, आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड है, इसको खरीदो अभी, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो इन्फॉर्मेशन जानता था वो मार्केट से बेटर था, बिकॉज आई वॉज डूइंग फिजिकल ट्रेडिंग। मुझे क्रॉप का अंडरस्टैंडिंग था, वेदर का अंडरस्टैंडिंग था, जो मार्केट में सबको नहीं होता है। अगर हेडविंड्स की बात करें, जो भी ये चीजें बात करें, अरे कि यार मॉल में इतनी भीड़ है, तो मॉल में इतनी भीड़ आज नहीं है, 3 महीने से हो रही है। तो वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जिसको उसने उसमें पोजीशन लिया, उसने रिटेल स्टॉक्स में पोजीशन लिया। सो दिस इज हाउ अ फिजिकल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वर्क्स, और अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वर्क्स, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज डिफरेंट। ऑल्दो हम लोग एल्गो कर रहे हैं, डिसिप्लिन एल्गो में भी चाहिए। एल्गो में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, कितने ऑर्डर्स फायर हो रहे हैं, मल्टीपल एल्गोस चला रहे हैं, कोई नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शनल है, क्या नेट पोजीशन है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, नहीं आता यार समझ में, सीरियसली। मैं तो 20 एल्गो लगा बैठा हूँ मैं, कभी, बिकॉज अब मैं अपने सिस्टम को इतना अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है मेरे सिस्टम कहाँ है, बट जनरली बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये समझना। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम से करते हो, आप डिफरेंट चीजें करते हो, बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये समझना कि आप हो कहाँ पे। तो आपको वहां पे डिसिप्लिन चाहिए होता है ये समझने में कि एल्गो जो कर रहा है वो एक टेस्टेड सिस्टम के हिसाब से कर रहा है, एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर रहा है, वो ठीक करेगा। उसके लिए जो सिमुलेशन करनी है आपको करना है, लेकिन वो डिसिप्लिन जो है वो आपको एक्सपीरियंस करके ही आएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए, पेशेंस करें, और एक प्लान के साथ जाएंगे हम। वो प्लान में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देंगे कैपिटल सेफ्टी, उसको प्रायोरिटी देंगे। किसी दिन हम लोग नहीं ट्रेड करें तो ठीक है, अच्छी बात है, चलेगा। दैट इज द थिंग दैट वी शुड ऑलवेज हैव। वी शुड नॉट बी डेस्परेट कि हम लोग यार पोजीशन क्यों नहीं ली, एल्गो ने पोजीशन क्यों नहीं ली। आई मीन दिस इज अ थिंग व्हिच वी फील, बिकॉज हम लोग समझते हैं यार एल्गो को ट्रेड करना ही काम है, बट कई एल्गो होते हैं यार वो ट्रेड ही करते हैं क्योंकि उनको ब्रोकरेज जनरेट करना होता है। कई एल्गो होते हैं नहीं, उनको रिटर्न जनरेट करना होता है, वो उसी टाइम पे ट्रेड करते हैं जब उनको लगता है कि रिटर्न बनेगा। तो सिस्टम्स वैसे ही होते हैं। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू एब्जॉर्ब, अंडरस्टैंड, स्टिम्युलेट, एंड देन दैट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग प्लान। अदर थिंग इज पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन कि यार डाइवर्सिफिकेशन करना है हम लोगों को कमोडिटीज में, और उसमें डाइवर्सिफिकेशन सबके लिए नहीं है यार। आई मीन अंडरस्टैंड कमोडिटीज हैव अ डिफरेंट रिस्क ऑल टुगेदर। उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होता है। कमोडिटी के जो वेव्स होते हैं, कमोडिटी की जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, दे आर वेरी सेंटिमेंटल, मच मोर सेंटिमेंटल देन व्हाट यू थिंक कि यार इसमें मार्केट में तेजी मंदी हो रही है, यू नो इसमें क्रूड ऑयल के मार्केट में, या हमारे बैंक निफ्टी में तेजी मंदी हो रही है। आई हैव अ पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। मैं ट्रेडिंग, मेरे लिए मैं सोयाबीन ऑयल पे ट्रेड करता था हमेशा, और आरएसआई हमेशा चलता था। मतलब इट वाज क्लियर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, नहीं बताऊंगा, वो हमेशा चलता था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। मतलब आई हैड अ सक्सेस रेट ऑफ 95% ऑन दैट टाइम फ्रेम। सेम चीज आई डिप्लॉयड ऑन मेंथा ऑयल।
आई वॉज नेवर सक्सेसफुल। वो सेंटिमेंट था मेंथा ऑयल का 3 या 4 साल पहले कि पूरे दुनिया में मेंथा की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। सिंथेटिक मेंथा नेचुरल मेंथा से ज़्यादा महंगा है, चाइना में ज़्यादा महंगा मिल रहा है, चाइना में प्रोडक्शन की शॉर्टेज है, ये है वो है। मेंथा इज मिंट, सो मिंट ऑयल और वो बहुत सारी मेडिसिनल पर्पस भी यूज होता है एंड मोस्टली सिगरेट्स में यूज होता है। सिगरेट्स की कंजम्पशन बढ़ रही थी, डिप्रेशन की बात हो रही थी मार्केट में, जो आई थिंक इट वाज 2016 जब हमारा स्मॉल कैप्स में बहुत प्रेशर आया था। सो देवर सो मेनी थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, बट मैं बोला नहीं यार, मैं तो टेक्निकली देखूंगा। वो जो उसमें जो मूवमेंट था ना, वो टेक्निकल से बाहर था। वो मूवमेंट था एक मोमेंटम का मूवमेंट था, एक मोमेंटम की वजह से था, एक सेंटिमेंट की वजह से था। कमोडिटीज में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा प्ले करता है। एक दिन वॉर का न्यूज थोड़ा सब्साइड क्या हो गया, 140 से $120 $110 तक आ गया था क्रूड। सो इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू ट्रेड कमोडिटीज। जिसको भी करना है हायर कैपिटल पे करे, लोअर कैपिटल पे यू शुड नेवर थिंक ऑफ इट। लोअर कैपिटल स्ट्रेटजीज मिलेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके कैपिटल को सूट करता है। उस स्ट्रेटजी का कैपिटल है, आपका कैपिटल नहीं है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड थिंक ऑफ। We have an Excel model, and I'll show you that Excel model. But Shiva has a question, so I'll just start taking. We'll just take this question. Shiva, you can unmute yourself. Okay. Yeah, I have a doubt. Like, I have collateral money. So, what is the cash in hand should I have? Like, if I want to deploy 1.5 lakhs, right? I have 1.5 lakhs of collateral. So, what is the cash also I should have in that, so that if any drawdown occurs, our collateral money can't be used for that, such like that. Did you understand? Sir, we'll take this question with the Excel sheet. Okay, fine. Thank you. Yeah. Anyone else? So I'll move to the Excel sheet. मेरे पास 2 Excel शीट खुली हुई है। एक तो मैंने कैपिटल एलोकेशन का एक मॉडल बनाया हुआ है जो आप कॉपी कर सकते हैं और अपने लिए बना सकते हैं। इसमें जो ये येलो पोर्शंस आप देख रहे हैं, ये आपको एडिट नहीं करना है, ये खुद ही कैलकुलेट होंगे और इनको हम लोग खुद ही देखेंगे। ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो एडिटेबल पोर्शंस हैं आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, या तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी डाली, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी जानते हैं, क्यों मैं किसी और की स्ट्रेटेजी डालूं। सो दैट इज समथिंग, एंड उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, सभी चीजें चेंज होंगी। इनफैक्ट सॉरी, टोटल कैपिटल भी जो है वो भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ एक और शीट है जो हमारी खुद की शीट है, हमारे स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस की। जो मैं चीजें बात कर रहा था कि स्ट्रेटेजी में आपको देखनी है कि उसका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसका सक्सेस रेशियो क्या है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाकी लोग अलग तरीके से करते होंगे, बट आप किसी भी डेटा को उठा के आप कर सकते हो। जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 46 पॉइंट नेगेटिव डेज हैं और 53% पॉजिटिव डेज है। जो बाइंग स्ट्रेटेजी है उसकी 52% है, 47% पॉजिटिव डेज है। जो नॉर्मल ऑड्स होते हैं वो 30-40% है। अगर हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करा है, सो दैट इज वेयर द स्ट्रेटेजी हैज इम्प्रूव्ड, राइट? सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। तो दिस इज हाउ यू कैन सी द स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आपको एक सिंगल डे का मैक्सिमम लॉस भी दिखेगा, सिंगल डे का मैक्सिमम प्रॉफिट भी दिखेगा, एवरेज लॉस एंड एवरेज प्रॉफिट भी दिखेगा। उसके हिसाब से हम लोगों ने एक आरआर रेशियो बनाया हुआ है और हिस्टोरिकल रेशियो बनाया हुआ है और एक एवरेज मीन रेशियो बनाया हुआ है। हिस्टोरिकल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक जो मैक्सिमम लॉस गया है, मैक्सिमम प्रॉफिट गया है, उसके ऊपर। एंड डे वाइज आपको यहाँ पे मिला है स्ट्रेटेजीज का पीएनएल एंड उसका ये। दिस इज पेपर। हमारे केस में हम लोग ये मतलब वी आर प्राउड ऑफ दिस थिंग के पेपर और लाइव में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। तो दिस इज समथिंग। सो दिस इज डेटा अपार्ट फ्रॉम द
the data you see in the you know टीटी का स्टैट्स, यहाँ पे हम लोग ये भी बता रहे हैं कि डीडी डेज कितने गए थे इसके, 8 दिन का डीडी था इसका, 2 दिन का था, 3 दिन का, 6 दिन का था। तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या चीजें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, सो दिस इज आवर फॉर्मूला और आवर प्रपोजल हाउ यू शुड लुक इनटू अ स्ट्रेटेजी। मैं थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ। एक हमारा टोटल कैपिटल होता है, ठीक है, और एक स्ट्रेटेजीज का इंडिविजुअल कैपिटल होता है। अब कई लोग स्ट्रेटेजी के इंडिविजुअल कैपिटल में ड्रॉडाउन नहीं इंक्लूड करते हैं, हम लोग करते हैं। तो ये मॉडल जो बना हुआ है ये कंसीडर करके करा हुआ है कि हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने कंजर्वेटिव जा रहे हैं और ड्रॉडाउन भले इंक्लूड किया हुआ, हम लोग एडिशनल ड्रॉडाउन इंक्लूड कर रहे हैं, 1:1 पे एडिशनल ड्रॉडाउन इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी का नाम लिखा है, स्टार्ट डेट लिखी है, कैपिटल लिखा है, मल्टीप्लायर दिखा है, उसका क्यूमुलेटिव आरओआई दिखा है, वो आपको स्टार्ट पेज से मिल जाएगा। उसके हिसाब से उसका एवरेज मंथली आरओआई क्या है वो समझ में आ जाएगा। लास्ट मंथ का आरओआई वो भी आपको दिख जाएगा, डीडी जो है वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपको अपडेट करने होंगे मैन्युअली, और कैटेगरी कौन सी है स्ट्रेटेजी की वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, क्या है। एंड उसका जो अलोकेशन है वो आपके मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लायर चेंज करा, स्कैल्पर को अगर आपने 2x पे करा तो आपका अलोकेशन चेंज हो जाएगा, टोटल कैपिटल चेंज हो जाएगा। और अगर आपने टोटल कैपिटल चेंज करा है तो आपको एक स्ट्रेटेजी को अलोकेशन 0 करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैपिटल रीइंस्टेट होगा, वरना आपको कैपिटल नेगेटिव दिखाएगा। तो इसमें आप अपनी, मेरे से ज़्यादा अच्छे एक्सेल वाले लोग हैं, तो दे कैन पुट अप ऑल देयर ओन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो दिस इज अ मॉडल डिप्लॉयमेंट स्टैट जो आप बना सकते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को जिसको आपको एनालाइज करना है। इंपॉर्टेंटली 2 चीजें हैं, एक तो डीडी परसेंटेज कितना हो रहा है उस पोर्टफोलियो का, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये मैक्सिमम डीडी है एज पर हिस्टोरिकल डेटा। होपफुली एंड 99% ऑफ द केसेस में उतना डीडी नहीं आएगा, क्योंकि अगर नॉन डायरेक्शनल काम नहीं करेगी तो डायरेक्शनल काम करेगी। अगर दोनों काम नहीं करी, मतलब 29 जनवरी वाला काम हुआ तो यार ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट द मार्केट इज गिविंग, बट अगले दिन वो रिकवर करेगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू एब्जॉर्ब एंड अंडरस्टैंड। ये पर्टिकुलर जो चीज है वो आपके खुद के डिप्लॉयमेंट की है, आपने कब डिप्लॉय करा, आपका रिटर्न क्या था। अगर हम लोग एक किसी भी स्ट्रैटेजी का डीडी की बात करते हैं तो जनरली ये होता है कि डीडी, कई बार डीडी आता है पीएनएल हाई के बाद, और मोस्टली पीपल ज्वाइन स्ट्रैटेजी व्हेन द पीएनएल हाई इज कमिंग। सो और यू नो पीएनएल हाई इज कमिंग, दे हैव जस्ट जॉइन मिड स्विंग, और उसी दिन उल्टा हो जाता है। जनरली यही होता है, उसी दिन ही उल्टा होता है। तो आपको बेसिकली वो जो डीडी है उसके साथ कंपैरिजन हमेशा करना चाहिए, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगी हुई है वो इसी बेसिस पे है कि अगर आपका डीडी हिस्टोरिकल डीडी से कम है, या अगर हिस्टोरिकल डीडी से इक्वल है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका डीडी बढ़ गया है हिस्टोरिकल डीडी से, सो यू नीड टू सीरियसली लुक इनटू दैट स्ट्रैटेजी कि हो क्या है। बाकी लोगों से बात करो, क्रिएटर से बात करो, जिन लोगों ने स्ट्रैटेजी पहले से डिप्लॉय करी हो, उनसे समझो हो क्या रहा है, कितने दिन नेगेटिव होगी, कितने दिन नेगेटिव हुई है, इज इट स्टिल इन योर कंफर्ट जोन। अगर बाइंग स्ट्रेटेजी है, आपने ये देख के कि यार रोज पैसा कमा रही है, ये देख के डिप्लॉय कर दिया विदाउट लुकिंग एट दैट रिस्क, फिर जब तक आपको समझ में नहीं आया कि यार ये तो यार मेरे तो लेने के देने पड़ गए, सो देन यू नो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट शुड नॉट हैपन। यू शुड टॉक टू पीपल, यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर पीपल के उन्होंने क्या देखा है, देयर विल बी अदर पीपल हु आर डिप्लॉयिंग इट। और अगर नई स्ट्रेटेजी है, आपको वेट करना चाहते हो, वेट करिए। आप उसको सिमुलेट करना चाहते हो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, आपके ऊपर है, जितना आपको कंफर्ट हो। इतना तो आपने देखा ही होगा कि जनरली बाइंग स्ट्रेटेजीज का ड्रॉडाउन जो है वो अच्छा खासा होता है, और एक तो ये ड्रॉडाउन है, और दूसरा जो ड्रॉडाउन का रूल हम लोगों ने सेटअप किया है, यू कैन इफ यू आर कंजर्वेटिव, आप वो ड्रॉडाउन का रूल ले लो। यहाँ पे ड्रॉडाउन इधर डालने की जगह पे आप वो ड्रॉडाउन का रूल ले लो, आपको पता चल जाएगा यार मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन इतना है। एक बाइंग स्ट्रेटेजी है तो उसका मेरा ड्रॉडाउन 60-70% तक जाएगा, समझ लो ये चीज। एंड देन दैट्स हाउ यू ट्रेन योर माइंड कि इतना मुझे करना है। एंड दिस इट्स फाइन, थोड़ा कैपिटल खाली रहेगा, आरएमएस इश्यू तो कम से कम नहीं होंगे कि अगर विक्स बढ़ गया तो आपका स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं कर पाए। जनरली मैंने ये देखा है कई लोगों के साथ, और आई थिंक सम ऑफ द पीपल आर हियर, आई विल नॉट टेक नेम्स,
गामा 3 या गामा मल्टीलेग उन्होंने पहले डिप्लॉय करी थी, एंड अनफॉर्चुनेटली एज सून एज दे डिप्लॉयड वी वर एट अ P&L हाई एंड वी हैड अ ड्रॉडाउन, अ मैसिव ड्रॉडाउन, 60-70% का ड्रॉडाउन, नॉट अ ड्रॉडाउन दैट वी हैड सीन बिफोर. उससे पहले का ड्रॉडाउन था 30-40%. तो वो जो ड्रॉडाउन आया उसमें सबसे बड़ी जो चीज हुई कि हम लोग कैपिटल लेके गए थे कि 1.5 लाख का कैपिटल है या 1.25 लाख का कैपिटल लेके गए थे, और ड्रॉडाउन इतना बढ़ गया कि सारा कैपिटल छोटा पड़ गया. So that's where we felt that now we start including the the capital in the capital includes a drawdown capital as well, so that कोई डिप्लॉय कर रहा है ऐसा ना हो कि वो बीच ट्रेंड में छोड़ रहा है, और लोगों ने छोड़ा भी, उसके बाद स्ट्रेटजी ने रिकवर भी करा, लेकिन वो कैपिटल जब चला गया, वो ड्रॉडाउन का जो प्लानिंग था वो चला गया, तो उसके बाद किसी का कॉन्फिडेंस आने में बहुत टाइम लगता है, एंड उससे बेसिकली यही होता है कि आप कैपिटल लूज करते हो. सो हमें वो चीज अवॉइड करनी है हमारे ट्रेडिंग प्लान में, हमारे कैपिटल लोकेशन में, हमें वो चीज अवॉइड करनी है. तो वो चीज अवॉइड करने के लिए यू कैन यूज व्हाट यू वांट टू यूज द फिजिकल या जो एक्चुअल DT स्टैट्स है. अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आपको वो मैक्सिमम वाले यूज करना है, आप अपने हिसाब से करिए. नई स्ट्रेटजी है, आप तो डेफिनेटली मैक्सिमम वाले यूज करिए, उसमें कभी भी आप पिछले 1 महीने का 2 महीने का ड्रॉडाउन मत देखिए, राइट. एक अदर पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट which I wanted to talk about is कि कैपिटल अलोकेशन कैसे करेंगे. एक ग्राउंड रूल विल टॉक अबाउट, राइट. आपको FNO तभी करना है जब जो आपको कैपिटल ऑफ FNO, लेट्स से सीरियसली आपको तभी करना है जब आपको कैपिटल है 5 लाख. उससे कम में अगर आप FNO कर रहे हो तो थोड़ा बहुत करो विथ अ प्रॉपर एलोकेशन टू कैश एज वेल. रीजन बीइंग FNO में अगर कोई बोले यार मैं 1 लाख रुपए में मुझे 1 लाख रुपए बनाना है यार, इट्स नॉट अनरियलिस्टिक, इट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यार. कौन बनाता है, किसने बनाया है? और जिनका आप देखते हो स्क्रीनशॉट देखते हो, हमारा भी देखते हो, तो कि यार एक स्ट्रेटेजी ने 50% बनाया, ये करा, वो स्ट्रेटेजी में पूरा पैसा नहीं लगता है यार, वो एक बहुत छोटा पार्ट होती है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट. और नहीं कर सकते आप. अगर आपको अगर हर बॉल पे बोल्ड होगे ना, तो आप सहवाग नहीं हो कि आपका टेम्परामेंट वैसा है, या वैसा सहवाग का टेम्परामेंट बना दो. कई लोग होते हैं सहवाग के टेम्परामेंट वाले होते हैं, तो हर बॉल पे बोल्ड होंगे, लेकिन उनको पता है कि जिस दिन मैं मारा तो ऐसे छक्के मारूंगा कि यार खत्म हो जाएगी सब चीज. तो वैसा टेम्परामेंट नहीं होता, और स्पेसिफिकली कैपिटल में तो बिल्कुल नहीं होता. वो क्या है, वो तो स्टंप टूटते हैं. यहाँ पे हमारी टांगे टूटती है, यहाँ पे हमारा विश्वास टूटता है. सो दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज नीड टू बी कंजर्वेटिव. सो नेवर, आई मीन आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर आप 1 लाख के कैपिटल से के लिए आ रहे हो, डायरेक्शनल करो ही नहीं. मैं खुला बोलता हूँ, अगर आपको 1 लाख का कैपिटल है, आप डायरेक्शनल मत करो प्लीज. आप कैश करो, स्विंग करो. स्विंग में कैश में होगा, कोई ना कोई कैश स्टॉक तो चलता ही है, आपको कुछ ना कुछ वहां पे मिलेगा ही. अपना कॉन्फिडेंस बनाओ. अब सक्सेस रेट से कॉन्फिडेंस बनता है. ऑप्शन सेलिंग में, नॉन डायरेक्शन सेलिंग में आपको जो भी लोग दे स्वेयर अबाउट ऑप्शन सेलिंग, they are only swearing because day in day out they know that 70 to 80% of the time they will have a portfolio high. They'll be sitting on more money than they had previously, and that has a different level of confidence boosting, right? So ये जो चीजें हैं आपको समझनी है, और उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो लोकेशन करना है. अगर हम स्पेसिफिकली इन रूल्स की बात करें, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, अभी किसी someone who wants to be a trader, sorry I forgot his name, he said that मुझे ओवरनाइट नहीं करना, बहुत रिस्की है, पैसा बनता है लेकिन मेरे को वो नहीं करना. वो ही इज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर. अगर उसको करना भी है पोजिशनल तो 10% करेगा, ज्यादा नहीं करेगा. इनफैक्ट 0% करो यार. अगर आपका कैपिटल 2 लाख से कम है, उसको करो ही नहीं, सिर्फ पोजिशनल करो. लेकिन इक्विटी में डोंट डू गैप अप गैप डाउन इन FNO. FNO इज हाथ का मैल. यू आर नॉट टेकिंग, यू आर नॉट गोना टेक अ डिलीवरी ऑफ 50 lots of Nifty or बैंक निफ्टी. You're not going to take a delivery of 250 shares of Reliance. अगर कैपिटल 2 लाख रुपए, you will not be able to take a delivery. तो why are you thinking कि you can play that thing? Leverage in FNO is exorbitant. अभी कम हुई है, उसके बाद भी बहुत ज्यादा है. और लीवरेज से पैसा जो बनता है ना, वो बड़े ट्रेडर का बनता है. हम लोगों ने पहले ही बात करी है, ये मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि वो लीवरेज से पैसा जो बनता है वो बड़ा ट्रेडर का बनता है, बिकॉज उसके पास इतनी डीप पॉकेट्स हैं, उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि वो सब कुछ प्ले कर सकता है. वो लिक्विडेट कर सकता है अपने स्टॉक्स, वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर सकता है. उसको पता है कि यार SGX को मैं चढ़ा दूंगा ना, मार्केट ऊपर खुल जाएगा, मैं पहले का पहले ही उसको बेच दूंगा.
वो इंस्टीट्यूशन को सब चीजें पता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग वी डिसाइड कि हमारा पोर्टफोलियो हम लोग कैसे एलोकेट करें. ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं. एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है लोगों की जो 100% पोजीशन में डिप्लॉय करते हैं, उनको हम डेयर डेविल कहते हैं. दीपंजन का एक बहुत ही फेवरेट वर्ड है वो, डेयर डेविल. तो वैसे भी लोग होते हैं एंड उसके बारे में भी हम लोग को बात करनी चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट. मे बी योर एंटायर कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल. जो भी आप कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम लोग ये वो उस कैपिटल की बात कर रहे हैं जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो. मैं उस कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा जो आपने अपने एफडी में डाला है, जो आपने प्लेज करके अपने शेयर्स में डाला है. इवेंचुअली प्लेज करके भी आप वो लीवरेज लेके आप वो ट्रेडिंग में कर रहे हो ना, तो अब ट्रेडिंग का आपका कितना कैपिटल है, हम उसकी बात कर रहे हैं. आपका इनकम टैक्स कितना है, आपके घर पे कितने एफडी हैं, वाइफ के कितने जेवर जायदाद हैं, इसका कोई मतलब नहीं है. आपने जो कैपिटल रिस्क करा है एफएनओ में, उसकी बात करना है, उसका हम लोग को कैपिटल मैनेजमेंट करना है. और वो कैपिटल मैनेजमेंट एक स्प्रेड आउट वे में होगा, अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज के साथ होगा. आज अगर डायरेक्शन चल रही है तो जरूरी नहीं है कल भी चलेगी, या अगर चलेंगी भी तो आपको डायरेक्शनल में जो विप्सॉस आएंगे शायद वो आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड उसके हिसाब से वी गो विद दिस प्रोसेस. वी गो विद दिस प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पोर्टफोलियो. जैसे अगर आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हो, आप एल्गो का भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, तभी जाके आप एल्गो में वो कन्विक्शन रख पाओगे जो अपने अपने स्टॉक्स पे कन्विक्शन रखते हो. बहुत सारे लोग हैं जो स्वेयर बाय अदानी स्टॉक्स. दे मेड सो मच मनी आउट ऑफ इट एंड दे हैव मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो आर अदानी स्टॉक्स. And that is happening just because they have stuck to that diversification of Adani. कि यार इसमें हम लोग को अदानी में अदानी गैस है, अदानी का ये भी है. अदानी is diversified यार. It is not one entity. It is diversified. Power में भी है, ऑयल में भी है, एडिबल ऑयल में भी है, हर जगह पे. तो that is the diversification that they have. Although it might seem कि यार सब अदानी का पोर्टफोलियो नहीं है यार. It's a different industry that they are looking into. So that's what we need to understand and always take it. And एक और सेगमेंटेशन है जनरली कि कितनी स्ट्रेटजीज हम लोग को लगानी चाहिए. मतलब ये मैक्सिमम है. आई मीन इफ यू आर हैप्पी एंड यू वांट टू डू लेस और अपने पोर्टफोलियो को कम से करना, तो आपकी मर्जी है. मतलब इट्स अप टू यू ऑल टुगेदर. बट मैं ये बोलूँ कि इससे ज्यादा स्ट्रेटजीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी चीज में क्रिटिकल मास होता है. आप अगर पोर्टफोलियो भी बनाते हो, क्रिटिकल मास का पोर्टफोलियो बनाते हो, 50,000 के शेयर खरीदोगे, 5,000 रुपए के शेयर खरीद के आप पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे. उसको स्पेकुलेशन ही कहते हैं. तो वो एक क्रिटिकल मास होना चाहिए स्ट्रेटजी का कि जब वो पैसा कमाए तो आपको अच्छा पैसा कमा के दे. एंड अगेन 2 लाख तक प्लीज डोंट डू एनी एफएनओ. आप बोलो नहीं यार मेरे पास तो 5 लाख एफडी में पड़ा है, 5 लाख मेरे पास शेयर्स में पड़ा है और मैं उसको प्लेज भी नहीं करा है, मैं तो ऐसे ही रखता हूँ. मत करो भाई, इट्स फाइन. 2 लाख पे अगर आपको 2 लाख कमाना है तो दिस इज नॉट व्हाट इट इट विल गिव यू. जाओ क्रिप्टो में करो, बट उसमें आप लूज भी करोगे, इसमें भी लूज करोगे. तो गेट रेडी फॉर दैट माइंडसेट. हमारे को सिर्फ डीडी मैनेज करना है. जो रिटर्न्स हैं वो तो आएंगे, डीडी को मैनेज करना है. कैसे हम ड्रॉडाउन को मैनेज कर पाएंगे और हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे. अगर आपका कैपिटल 2 लाख रुपए का है और कल मार्केट आपके डायरेक्शन से अगेंस्ट हो गया, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, नहीं कर पाएंगे सर. कोई भी नहीं कर पाएगा. बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते, हम कैसे कर पाएंगे. सो दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज वांट टू टॉक अबाउट टू पीपल. उसको हमेशा इस तरीके से देखिए. दिस शीट यू कैन कॉपी, यू कैन वर्क ऑन योर ओन. आपको उसको और अच्छा बनाना है, जो करना है करिए. आपको उसमें हमारी स्ट्रेटजी डालनी है, किसी और की स्ट्रेटजी डालनी है, बिल्कुल डालिए. किसी और के साथ शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करिए. हमारे ग्रुप पे हमारी स्ट्रेटजी के साथ शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा आपको. That finishes the part of capital allocation and I'm happy to take questions. एक एक करके मैं थोड़ा पानी भी पी लूं और एक एक करके let's start discussing and if you have any questions. Hello. Hi Venkat. You will have to unmute yourself.
Venkat, you will have to unmute yourself to speak. We can't hear you. Venkat, hello. Hello. Yeah, sorry, I was on mute. No problem. Sir, please ask your question. Yeah, so I was just doing the paper trading, so I had to do the JIP. So I was more interested on the JIP Nifty rather than the combined one. So which one you prefer, like whether it is only Nifty or if I go with the actual JIP? Sir, sorry, this webinar is related to capital allocation. And if you have a query regarding one of our strategies, please send a message in the group. One of us Yeah, will so this is, I understand. So the capital also, right? Like if you see the JIP requires 1 lakh and the JIP Nifty is only 50,000, right? So because of 50,000 Okay. only, I'm going with the JIP Nifty. My question is, sir, what is your total capital? Currently, it is 2 lakhs. Sorry, sir, I'll not advise you. Okay. I have a ground rule. Below 2 lakhs, I Okay. will not advise you on FNO at all. Okay. So what is the minimum capital required? For FNO, you should have a capital of 5 lakhs. Okay. I mean, if there is a drawdown on ZIP, you're deploying it on 1x. There's 20,000 rupees ka drawdown. 20 to 25, or maximum drawdown that could be there theoretically because of the spreads that are there is about 60,000 rupees. Mm-hmm. Will not be able to take it, Mr. Venkat. It's not a, I mean, you have to plan for the worst. No, I understand. Like because I just started and we are just starting into this phase. So that's why I have minimum. So I mean, capital. you are free to talk, free to deploy, but I will not suggest. So if we have set up some ground rules, it is for some reason, right? There are ground rules, and I've explained my reason why I say that this is a ground rule. Tomorrow there will be something else. Tomorrow someone will say, "Yeah, COVID 2022 is started." Yeah. And overnight there are 1 lakh patients in Delhi. What will we do? Nothing. True, that is true. Within 24 hours, Modi ji will say, we go for a lockdown again. What can we do? Nothing. So it has to be part of that portfolio. When you do intraday and positional, you have 5 lakhs, you are a medium risk person. You say, I want to be a medium risk. I don't want to be conservative. Then you deploy 80% of your capital into intraday, and then you put 20% of your capital into, positional, and then you deploy ZIP. That's how the process is. Okay. Got it. Thank you. Thank you so much. You're welcome, sir. Dhananjay, I'll allow you to speak first. Dhananjay, you can unmute yourself and then. यस मैं अनम्यूट कर दिया है. मुझे एक कैपिटल एलोकेशन की रिगार्डिंग क्वेश्चन ये था कि जो आप रेगुलरली ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हो कैपिटल ऑफ अराउंड 18 lakhs, करेक्ट? सो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप कैपिटल एलोकेशन के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए क्या कैपिटल सजेस्ट करते हो व्हेन यू आर हेल्पिंग आउट टू मैनेज either it is 10 or 15 or whatever the slabs, वो थोड़ा सा बताइए. And if this is the right platform and you can tell us your portfolio charges also, management charges. Sir, I have put that into another slide because that was not part of the whole discussion. Actually, this discussion is to enable you to manage your own portfolio. Okay, right. So this one is only unable to manage by ourselves only by deciding the strategies you have mentioned. Exactly, that is what portfolio manager does. He decides the strategy that he needs to deploy. Algo में और कुछ करना ही नहीं है हमको. Algo में करना ही है और कुछ है ही नहीं. Actually, I don't know आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा. जब से मैं Algo में आया हूँ, 9 to 3:30 is my fun time. Okay. And you would have seen, a lot of us having fun on the group, TT group, and we have, our own group, and we always have fun because Algo में कुछ करना ही नहीं है. एक बार डिप्लॉय कर दिया, हो गया, खत्म हो गया. इतना विश्वास हमें अपने एल्गोस पे है. हम लोगों ने इतना काम करा है उसके ऊपर. उसको आपको जब लाना है तो उसमें इनिशियली वर्क करना पड़ेगा.
6 ट्रू महीने पहले ये चीज नहीं थी मेरे साथ। 6 महीने पहले, या इनफैक्ट अभी आज भी कई बार जब मैं डेवलप करता हूँ एल्गोस, एक तरफ मेरा चार्ट खुला होता है, एक तरफ मेरा ट्रेड खुला हुआ होता है। So करेक्ट that is what I do, but you don't need to do that. You need to just see the P&L of the strategy, do the paper trading, and then allocate as per your ओके capital. Just go with the advice that we are giving here, and there are many experts that you will see on TradeTron. You will see other creators as well. I mean, we could have asked some creator to come here and then share his experience, but it doesn't make sense for a lot of people to talk to talk on our group as well. But you will ask them, they will give you the same answer कि ये करोगे तो पैसा बनेगा, ये करोगे तो पैसा बनेगा, यही है. This is the truth. This is the only way you will make money. You have a ओके disciplined trading plan, leave it. This is the good thing about algo is you don't need to physically see the charts. If you are करेक्ट able to absorb the volatility, if you are able to absorb the M2M volatility that you see of the strategies that you are analyzing, उसके बाद you don't need to see anything. Maybe error execution, but उसके अलावा कुछ भी नहीं. And then you just leave it. It will work. आपने अपने आप को ऑलरेडी 10% ड्रॉडाउन के लिए प्रिपेयर कर दिया है. अगर मैं करेक्ट यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो बेसिकली अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने यस 10% ड्रॉडाउन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं. करेक्ट करेक्ट वी आर सेइंग कितना ड्रॉडाउन होगा, आप 2 लाख कम यस लगाओगे. यस Again, I'm talking about let's say a conservative trader. Someone like me will say यार इसके ऊपर तो मैं और भी लीवरेज लूंगा, मैं इसके ऊपर OTM हेज लूंगा, मैं किसी और से लीवरेज लूंगा, मैं इसको और भी करूंगा. Someone will say like that, but I'm talking about a conservative trader. जिसने डायरेक्शनल पहली बार करना है या जिसने डायरेक्शन में हाथ फूके हुए हैं. हम लोग सब हाथ फूक के आए हैं यार, इंक्लूडिंग मी. यस हम लोग हाथ फूक के आए हैं, कितना भी टेक्निकल नॉलेज हो, लेकिन यार वो टेम्परामेंट नहीं बैठता, वो एल्गो से बैठता है, क्योंकि उसमें दिखता है हम लोगों को. हम लोगों ने बैक टेस्ट में देखा है, हम लोगों ने चार्ट में करेक्ट देखा, लेकिन चार्ट में हमारी फीलिंग्स नहीं होती. ट्रू लेकिन जब एल्गो बनाते हैं ना तो उसमें भी फीलिंग्स नहीं होती. वही एडवांटेज है एल्गो का. ये जैसे आपका कॉम्बिनेशन है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का, जितना भी मैं आपका वो रेगुलरली पीएनएल चेक करता हूँ ना, सो इट वाज गोइंग वेरी स्मूथली. मींस इट इज हार्डली अ डे व्हेन वी गेट नेगेटिव विद ऑल 6-7 स्ट्रेटजीज मेंशन जो फोटोज आते हैं. सो मेरा यही पॉइंट था कि आइदर इफ यू हैव दैट मच कैपिटल आई शुड डिप्लॉय ऑल वन और आई शुड कंसल्ट यू फर्स्ट आइडियली डिप्लॉय ऑल अगर वन. आपको 20 लाख के कैपिटल में करना है तो मेरे हिसाब से आपके पास 4 से 5 स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. आपके पास 7-8 स्ट्रेटजीज नहीं होनी चाहिए. ओके तो आपको वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है. हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो या हम लोग अपना वो दिखाते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हमारी स्ट्रेटजी ने कैसे परफॉर्म किया. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने उसी स्ट्रेटजी को उसी रेशियो में डिप्लॉय किया. ओके ओके ऐसा ठीक है ठीक है ठीक है. उसका मतलब ये नहीं होता. मैं ठीक है. उसका मतलब वो नहीं कर रहा था. यस यस ओके हाँ, ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग वो बोल रहे हैं कि उसी रेशियो में डिप्लॉय करो. वो आपको जो डिप्लॉयमेंट करना है वो आपके ड्रॉडाउन का अंडरस्टैंडिंग से होगा. सबसे पहले आपका ड्रॉडाउन है. आपने यहाँ पर अगर अपना ड्रॉडाउन मैनेज कर लिया ना, आपने अगर यहाँ पे देखा होगा, मैंने कहीं पे भी ये एवरेज रिटर्न की बात नहीं करी है, एवरेज डीडी की बात करी है. करेक्ट. द रीजन इज रिटर्न आपका आएगा, आप डीडी को मैनेज करो, यस बाकी सब आएगा. अंडरस्टूड. ठीक है. यस डन. अरविंद जी, आपने क्वेश्चन पूछना था, मैं आपको अनम्यूट करा है, अलाउ करा है, आप अनम्यूट करिए खुद को. अरविंद जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को. यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. मिस्टर अरविंद, so I'll take questions from Sanjeet. Okay. Bro, Arvind sorry. That was an accidental tap. I'm so sorry. No worries. Yes, sir. Okay. Sanjeet, I've unmuted you. मैंने आपको unmute कराया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना. Yeah, good evening विशाल जी. Good evening संजीत. हाँ, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग नॉन पोजिशनल्स. हाँ, हम लोग जैसे कि मतलब फ्राइडेज को डीके कम होता है
और मंडेस हम लोग देखे हैं थोड़ा नॉन पोजिशनल के लिए ठीक ठाक नहीं रहता है, क्योंकि वो डायरेक्शनल कभी रहता है तो इट्स अगेंस्ट नॉन पोजिशनल समटाइम्स। ओके, सो अगर हम लोग नॉन पोजिशनल स्ट्रेटेजीज रन कर रहे हैं, कैन वी पोज सम डेज, मतलब हम लोग अगर फ्राइडे मंडे को अगर सिस्टम को मतलब स्ट्रेटेजी को पोज कर देते हैं और 2-3 दिन रन करते हैं, सो वुड यू बी एडवाइजिंग ऑन दैट? मतलब वो अच्छा रहेगा या वी हैव टू रन इट मैम एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर, वी हैव टू रन इट एवरी डे? सो आई नीड एन एडवाइस मैं आपको ऑन वही दैट चीज कहने रिगार्ड। की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि फ्राइडे आपका काम नहीं करेगा, फ्राइडे को कैपिटल मत अलोकेट करो, उसको ओवर अलोकेट मत करो। अगर आपने बोला कि आपने नॉन डायरेक्शनल चलाया है 5 लाख के ऊपर और आपने बोला है कि यार फ्राइडे को पैसा नहीं बनता, मत करो, उस दिन सो ट्रेड ही मत इट्स करो। सो इट्स फाइन ना, सो माय मतलब हाँ, मेरा तो जो फिर थॉट उसको प्रोसेस मतलब है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अलोकेट करो किसी और को, सो यू आर नहीं अवॉइडिंग नहीं, लॉस, राइट? यस यस, सो दैट इज वन थिंग। आई विल नॉट ट्रेड, नो ट्रेड डे फॉर दैट, मतलब हाँ, वो वो दिन आप अपना ट्रेड ही प्लान नहीं बना के करेंगे। रखो कि मेरे को ट्रेड नहीं करना। हाँ कोई कई लोग हैं तो एक्सपायरी को ही ट्रेड करते हैं एंड दे मेक हाँ, वेरी गुड वैसे मनी। मैं देखा हूँ। यस यस यस, आई हैव सीन सम पीपल दे Depends in ओनली here ट्रेड ऑन actually, एक्सपायरी। you know, his normal capital and expiry capital. Expiry capital is 5 times. He's a big trader. You know, he trades only expiries. So you know, it is how it is. यस Some people like trading expiries because there is a certain thing that you will get theta decay. Theta decay बहुत सारी चीजों से आता है। फ्राइडे को थीटा decay वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन यस मूव आ गया, आपका यस 920 स्ट्रैडल है, कट गया कहीं पे और उसके बाद तो आपको मिलेगा ना डीके। थीटा की वजह से, डेल्टा की वजह से मिलेगा, लेकिन डीके तो मिलेगा ना। डीके कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें एक डेटा ड्रिवन अप्रोच करो, यहाँ अपना प्लान बना के जाओ। आपका बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये आप बनाइए और आप कंफर्टेबल उससे हो। उससे आपने उसमें देखा कि आपका ड्रॉडाउन कितना आएगा। अगर आप बोले अच्छा ये मेरे को ऐसा करना है, तो आप स्ट्रेटेजी का नंबर जो है, जैसे हम लोगों ने एक्सेल शीट दिखाई, आप उसमें से सर डाउनलोड करके फ्राइडे का नंबर हटा दो और देखो उसका क्या एवरेज रिटर्न आ रहा है, क्या उसका ड्रॉडाउन आ रहा है, उसके हिसाब से उसमें फिल कर दो। आप खुद ही बना दो। ठीक है, ठीक, आई विल डू इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। संदीप, you had a question. Hello, good evening, sir. Sandeep, I can't hear Hello. you. Hello, hello. Yes, Sandeep. Good evening, sir. Good evening. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि मेरी 6 लाख की कैपिटल है, तो उसमें मैंने 2 लाख जो है डायरेक्शनल के लिए जो है लॉट किए, बाकी 4 लाख से मैं जो है अभी नॉन डायरेक्शनल कर रहा हूँ। तो मैं ठीक है अभी जो है बाइंग करना चाहता हूँ कि मतलब ऑप्शन बाइंग भी स्ट्रेटजी यूज करना चाहता हूँ, तो वो कितना % रख सकता हूँ? सर देखिए, आप बेसिकली अगर हमारे ग्राउंड रूल्स के हिसाब से बात करें तो आप एग्रेसिव ट्रेडर में फॉल कर रहे हो अभी, हाँ जहाँ पे आपका 30% डायरेक्शनल में है या 30 से 35% डायरेक्शनल में है और बाकी आपका नॉन डायरेक्शनल में है, जी। राइट? और अगर आप बोल रहे हो आपको बाइंग करना है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो उसको पोजिशनल सेलिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट करो, बिकॉज उसका सक्सेस रेट ज्यादा है। ओके, तो मतलब पोजिशनल सेलिंग डायरेक्शनल के के साथ साथ। करो और उसमें अगर आप हाँ सर, बताइए सर। उसमें अगर आपका ये ड्रॉडाउन के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपका बैठता है तो प्लीज गो अहेड विद दैट। मतलब कितना % होना चाहिए टोटल का? जैसे 6 लाख कैपिटल है तो सर उसका वो तो कितना आप जब आप डालोगे, अब अगर आप आई थिंक मेरे बताने से कुछ नहीं होगा सर, वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आपको 20% ड्रॉडाउन एक्सेप्टेबल है तो वो करो। नहीं, मुझे अगर आपको मुझे 10%, एक्सेप्टेबल है। मैं मेरे को बहुत साल हो गया, तो मैं मतलब हाँ 20% क्या 30-40% ड्रॉडाउन देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर, तो फिर आप तो हमारे एग्रेसिव या डेयर डेविल कैटेगरी में आते हैं। हाँ, मुझे सर कोई मतलब इमोशनली कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और अगर वैसा है तो फिर आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो अलोकेट करिए। ठीक, जनरली यही है कि आपने अगर अपने ड्रॉडाउन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उतना एक्सेस कैपिटल डाल दिया, क्या हाँ देखिए, जैसे अगर हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, कोई और नहीं इंक्लूड कर रहा, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला काम आ जाएगी ऐसे ठीक प्लान है। करने के लिए, सो दैट यू आर एबल टू मेक श्योर कि आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर्ड रहेगा एंड ऐसा ना होगा कि आपने दूसरी पोजीशन नहीं ले पाएंगे। सबसे बुरी बात ये होती है कि एक बार ये एक चीज होती है पोजीशनल में, जिस दिन ड्रॉडाउन होता है ना, मोस्टली उस दिन या उसके अगले दिन बहुत बढ़िया रिटर्न आता है।
नहीं वो तो है। अभी जो एक हुआ नहीं था कल परसों में, आपने देखा होगा, जो हाँ गामा स्कैल्पर है हाँ आपकी, उसने एक जो है ओवरनाइट एक पोजीशन गलत ले ली थी। हाँ जी सर, तो उस दिन मेरे बिल्कुल साथ यही हुआ था, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है ड्रॉडाउन हो गया 16% का। बिल्कुल सर, और फिर बिल्कुल सर। मॉर्निंग में जो है कल मैं कोई ट्रेड ले नहीं पाया था, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में जो है 1 लाख की कैपिटल जो है वो फंस गई, और उसके बाद हाँ, कोई नया ट्रेड ले नहीं हुआ, तो हमने पूरे दिन छोड़ ही दिया, कोई ट्रेड नहीं लिया कल। फिर तो वो तो सिर्फ जो हमारी है, गलती थी। मैं उसमें आपकी गलती नहीं थी, वो हमारे सिस्टम की गलती थी, नहीं विच हैज वो बीन तो सर फिक्स्ड। ठीक है। हाँ। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, जो आपने जो बोला ना। एंड उसका एक और रीजन भी होता है, वो साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट करता है ना आपको, कि यार इसमें इतना बड़ा लॉस हो गया, मैं क्या करूं। मेरे लिए तो सर बड़ा ही लॉस है, वनडे के लिए बड़ा लॉस था, हाँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, अब आगे रिकवर होगा, 2-3 महीने में रिकवर हो फिर अगर आप जाएगा। बोल रहे हो एक तरफ कि ये वनडे के लिए बड़ा लॉस है, और आप बोल रहे हो कि मैं 30% जीडीपी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो कहीं तो पे मैंने आपको सर खुद से एक्सेप्ट बात कर करनी तो है। लिया। नहीं नहीं, कर लिया, बट अगर आप बोल रहे हो कि वनडे के लिए बड़ा लॉस है, तो आप एक बार खुद हाँ। से बात करिए कि एक्चुअली आप हम्म। चाहते क्या हो। अगर आपको ये है कि यार मेरे को बड़ा लॉस नहीं लेना, तो आप गामा क्यों डाल रहे हो, आप बाइंग क्यों डाल रहे हो। एक्चुअली सर ये बाई मिस्टेक लॉस था, ये स्ट्रेटजी का लॉस नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो अगर है, मैं कह रहा हूँ कि वो बाई मिस्टेक जो हुआ, वैसे पास्ट में भी हुआ है सर। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल में भी हुआ है वो चीज। अगर तो मेरे साथ ऐसा ऐसा नहीं नहीं है हुआ कि तो। वो ड्रॉडाउन कोई अलग था। जैसे डिफ की बात करें, डेल्टा इंडेक्स फ्यूचर, उसका जो ड्रॉडाउन आया, मेरे को पर एक्स का 10,000 रुपीज का ड्रॉडाउन आया, वो 10,000 का लॉस आया, इनफैक्ट 3,000 का एडिशनल प्रॉफिट था। तो जो 13,000 रुपए का लॉस आया, इट इज नॉर्मल, इट हैज सीन दैट काइंड ऑफ अ लॉस। हम्म। सो इट इज नॉट के, मतलब जो लॉस होता वो था। अगर मेरे पास एक नॉर्मल भी स्ट्रेटेजी थी, उसमें 10% का लॉस था। जो गामा एग्रेसिव है, जो मैं पर्सनली डाल रहा हूँ, जिसमें ये एरर नहीं आया, उसमें 10% का लॉस था। तो ये चीजें होंगी, आप अपने आप को प्लान कर लीजिए उस चीज के लिए। डायरेक्शनल में यही होगा, जिस दिन ड्रॉडाउन आएगा उसी दिन पूरा आएगा। अच्छा आप सर अगर ये उसके जो लिए तैयार आपकी हो। हम्म हाँ सर, ये जो आपकी जीआईपी वाली स्ट्रेटजी है, तो ये तो बाइंग की है ना, तो इसको जो है डिप्लॉय अभी किया जा सकता है। हाँ, जीआईपी जो है उसको वो बाइंग की है, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। वो गामा मल्टीलेग का ही एक पार्ट है। उसमें गामा मल्टीलेग में हमारे में पहले 3 पार्ट्स थे। एक इंट्राडे था, 2 पोजिशनल थे। इंट्राडे को भी हम लोगों ने हटाया हुआ है, और पोजिशनल में ही जो सबसे प्रॉफिटेबल लेग था, हम लोगों ने उसको गिप में बनाया है। तो ये और एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है, बट एट द सेम टाइम, अगर सर आप एक बार सिर्फ ये कैलकुलेशन कर लो कि आप जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हो उसका ड्रॉडाउन कितना है। अगर आप जिप डिप्लॉय कर रहे हो, तो उसका आपको ड्रॉडाउन 4% नहीं लेना है। वो नई स्ट्रेटेजी है, उसका ड्रॉडाउन आप 20% लीजिए। ओके सर। और आप ये खुद के लिए बनाइए। जब जिस दिन आप खुद के लिए बनाएंगे, आपको खुद को आंसर मिल जाएगा कि आपको अच्छा, वो मतलब ड्रॉडाउन लेना है कि 20% भी जो है डीडी जाए, उसके बाद भी स्ट्रेटजी चालू रखनी है ना। एग्जैक्टली हाँ। तो वही है ना, बिकॉज जो पोजिशन स्ट्रेटेजी होती है उसकी रिकवरी तभी आती है। एक दिन उल्टी हाँ पोजीशन आई, एग्जैक्टली कट गई। सर। अब एक्चुअली निफ्टी वही है, है वो कि एक एक दिन जगह उल्टी तो रुक पोजीशन के आई, रह नहीं कट गई। सकता है। सॉरी, कह रहे हैं कि जैसे निफ्टी है, वो एक जगह रुक के तो रह नहीं सकता है। अब वो किसी भी बिल्कुल डायरेक्शन मूव तो लेगा ही लेगा। तो जब सर, हमने अगर वो तो लॉस होने के बाद अगर छोड़ दिया, तो फिर वो प्रॉफिट भी छोड़ देंगे। वही है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो एक चीज है, अगर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है या कंजेशन मोड में है, हाँ। या बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है या कंजेशन मोड में है, आपने तो देखा ही है। हमारी स्ट्रेटेजी पोजीशन नहीं लेती। कितना भी नहीं नहीं, बोलोगे आप बहुत पोजीशन नहीं ले रही, पोजीशन नहीं ले हाँ रही, नहीं लेगी। हाँ। तो वो जो चीज है, वो आपको हमारी स्ट्रेटेजी में मिल रहा है, किसी और में नहीं मिलेगा, किसी और में भी मिलेगा, शायद हमसे बेटर होगी कोई स्ट्रेटेजी। नहीं बट द सर, उसके पॉइंट लिए इज कोई कि लिमिट नहीं है। सर, मैं मेरे कहने का ये मतलब है, द पॉइंट इज हाँ वॉट एवर बी द केस, वो जो जी। ड्रॉडाउन आएगा वो एक ही दिन में आएगा। ये आप अच्छा अपने सर, आप कहीं पे लिख दीजिए। अच्छा सर, ये गामा ओवरनाइट स्कैल्पर वाली जो है, अभी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, गामा ओवरनाइट जो है वो बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। मतलब बाकी स्ट्रेटेजी में तो क्या है कि 10 चीजें पैरामीटर चेक करते हैं, गामा में सिर्फ एक ही चीज चेक करता है कि मैं आज लॉन्ग जाऊं या शॉर्ट जाऊं। और जिस दिन उसको मिलता है कि यार लॉन्ग जाना है, तो वो सिर्फ लॉन्ग जाता है। कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हालांकि मैंने थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स अभी डाले हैं कि किसी दिन पैरामीटर सही नहीं हो तो एग्जिट कर ले, बट जनरली उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। बीच में मेरे साथ एक दिन हुआ था कि मिड मार्केट में इट वेंट डाउन 15,000 रुपीज,
By the time the market closed, it was plus 25,000 rupees, and the next day it opened at plus 40,000 rupees. लेकिन जो मिड मार्केट में 15,000 गया था, तो अगर वहां पे एसएल होता तो कट जाता, किसी भी स्ट्रेटजी का एसएल कट जाता, ट्रेलिंग एसएल होता, एसएल होता, कट जाता. लेकिन ये नहीं करेगा ऐसा, इसका काम ही वही है. इट्स अ वेरी रिस्की स्ट्रेटजी एक्चुअली. ठीक है. Although one of the most successful strategies that we have as well. नहीं, मैंने देखा है कि जब डाउट होता है उसको तो पोजीशन ही नहीं लेता है, स्पेशली फ्राइडे को. मैंने पेपर ट्रेड भी उसको लगाया था, पेपर ट्रेड भी किया मैंने उस पे, तो अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रही है. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. अरविंद, आपका क्वेश्चन है. आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू. यस अरविंद, you can unmute yourself. Sorry, I feel I'm unmuting you, but you have to unmute yourself. Arvind? Bro, can you hear me? Yes. Yeah, hi. Actually, I'm new to this Strategy One community, and I've been going through your strategies. Previously, I was using some other strategies, and returns are pretty good, but I'm not impressed with the overall returns for the past 3 months. So I'm planning to switch my funds to some other algos. So I was searching for something, and I got to know about Zeta Index Positional. I'm having a capital of 5 to 7 lakhs. Like, how would you recommend me to deploy my funds? Sir, it is already put up. Just look into this sheet. Okay, fine. You have some existing strategies that are working for you. Fit those numbers over there. You might have live data as well. Fit that live data number with there, and then fit the data for Zip. The moment you fit the data over there, consider the drawdown as 20%. You will get to know, what will the strategy give you, and I think more importantly, what the strategy can take from you. Okay. So once you're comfortable with that, what the strategy can take from you, then what the strategy will give you is what you can see from the performance and what people talk about. There were many people that joined, Zip sometime back, and they, I will not name. There are some people who were there in the group as well. We said, "No, we will stick to it. We'll stick to it." First day when there was a day when it had a 6% drawdown, in midday. People stopped and paused, and they were saying, what the kind of strategy it is. It has hit SLs on both the sides. Same day, it recovered 4%. Good. And the week ended positive. Good to hear that. So that is how a position strategy works. Not only mine, others as well. But you have to just absorb, maintain, understand the risk you will have. Bottom line, on a positional strategy, your drawdown can be on the same day. Are you ready for it? Is that the daily drawdown that you are ready with? That's why I said in the beginning, what is your daily drawdown? What is your monthly drawdown? Okay. So the Zeta Index Positional is calling for 1 lakh of capital for both the Nifty and Bank Nifty, right? Yes. So if at all there is a drawdown of 20%, I'll have to add funds to the strategy to make it work further. Am I right? Yeah, mostly all our strategies have the drawdown considered in the capital itself. Okay. No, I mean, not most. I would say all the position strategies have got a drawdown considered in the strategy itself. Okay, like what my point was, as you told, consider a drawdown of 20%. Okay, well understood. Like if at all the strategy is taking 1 lakh as capital and 20% drawdown is happening, like in the morning the positions are taking in the CE side and the market reversed at some point and we are hitting stop loss. For taking the next call, should I have some buffer amount in my account, or 1 lakh is more than enough? So that depends upon your broker, because at times what happens is when the volatility is high, some brokers increase their requirement. This is like an ideal. Yes. Yeah. So if you're doing Finisher, then you should have additional 10% capital. For other brokers, it doesn't matter. And then again, if you're sticking to the formula that we are talking about, anyways, you will have some buffer which will be additional to your DD.
All right, understood. And can you shed some light about the strategy, like how much is the stop loss and So what is the target for there is hitting? a video of the strategy that's on our YouTube channel as well. We'll share the link Okay, of that video. We'll share all the links, after this okay. call. And also from your Excel sheet, I was not able to get the share codes of all the strategies. Can you share that as well? So that is available on the dashboard page. So you can actually see the share codes Dashboard of the page. strategies. Okay, Whatever is not okay, available, I think Bank Nifty Scalper is not available, but we'll add it. There's a share code for okay. all these strategies. Okay. So this the major difference between the Zeta index positional is Zeta index positional and the other ones, Nifty and Bank Nifty. So those are specific to Nifty and Bank Nifty. This will take both the legs, right? Exactly. Okay. So that's it. As of now, I'm fine with this. For the past 3 days only, I'm following your page, and I'm having some good confidence. As you recommended, I'll do paper trade for 1 or 2 weeks. Then I'll deploy it in live. Thank you, sir. And about this fees, can you shed some light? There was something like 7.5% and free till April 30. What is that? Yeah, so sir, our sharing is very simple. From Okay. some of the strategies which are free right now on promotional basis, they will Okay. be on, we'll charge a sharing on it. We are a commercial Okay. organization, and we believe that, we need to make you good money, and we also need to get a share of it. So there is a 5% sharing in theta strategies, which is non-directional, 7.5% Okay. into ZIP and, Okay. the diff, which is a future strategy, and option buying. Okay. There's a 10% sharing. Okay. And if at all I'm deploying some 5 to 10x in ZIP, Zeta index positional, how can we manage the slippages? Like, is the slippages are very high or is it nominal? Sir, I think slippage is the best answer we will get from the users. Okay. Yesterday we had about 6 crores of deployment. Okay. And there was hardly any slippage that people saw. Slippage has many Okay. reasons. I'm not saying that So ZIP is a are we strategy which doing is any immune to order it. slicing for that, or all the No, orders are there's no order placed in one slicing as shot? yet. There's no order slicing as yet. But what we are going to do Okay. from the 1st of May is that the ZIP version that you have on the marketplace, that's going to be limited to 10x. Okay. Beyond 10x, Okay. So there'll be versions where you can do order slicing, and you can also have multiple strikes being taken, okay. nearby strikes if you want. So if someone wants to do, let's say, 100x, and they want to Okay. say, I want to spread out my risk over the different strikes as well. So you can also do with Okay. different strikes. You can do slicing as well. So that Okay. you'll have all the kind of flexibility. And if you've seen other, Mm. the professional traders who are doing, quite a few let's say deployments, quite a Okay. few multiples, they Okay. would trade not only in one strike, they will trade in 3-4 strikes in the same direction. Multiple spec. Okay. So that's how professional Diversification of traders the funds. Yes. work. So that's what we will enable you to do if you want to go to that level. But if you're doing 10x, Okay. for that, you have enough Fine. with the current version. Okay. Thank you so much. I'm fine with this. You're welcome. So this particular meeting, is it happening every week, or is it No, this is occasional? a special one. Okay. Personally, I felt a lot of people are currently feeling that one algo is enough, and Okay. we don't need to do anything else. I personally felt, we as a team felt, that is not the right way of thinking about it. Okay. Specifically, also at a time when non-directions are not doing great, it becomes very important to remind people that no, not always you should go for non-directional, because you need to understand the drawdown. You might not have seen it today. Tomorrow you will see Fine. it. Okay. All right. Right? Okay. Fine. Thank you. And I would suggest you to do such interactions now and then possible. So the People will same have. interaction is not going to happen again. But yes, we do different kind of interactions, and we are always available. We have a lively group, I would say.
was a lot of Fine. But contribution from the community. why? Because n number of people are joining on daily basis. Like if there is some Yeah. occasional meetings, they'll have some clear idea about the So strategy and they'll the be there. support. The meetings will be there. Don't worry on that. What I'm trying to say is that this particular topic we have covered in detail, I believe, and I think we've Fine. spent we've had quite a No bit of worries. quality discussions, Fine. with you No guys. worries. So this topic is not going to be discussed again. But Okay. yes, we will have interactions. Okay. Fine. Okay, sir. SBM. Sorry, I don't know your abbreviation, but you had a question. I had allowed you to unmute yourself. SBM. Okay. Anyone else? SBM, if you want to speak, you need to unmute yourself. Otherwise, Uppal will speak. Uppal is speaking now. Yes, sir. Hi, sir. Good evening. Thank you for that Hi. Good evening. great Excel sheet which you shared. सर इसमें निफ्टी का जिप का नहीं था, ये बैंक निफ्टी वाला है ना सर, लास्ट में क्या? सर वो आपको नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा, जो अगर आप इसकी बात कर रहे हो वो नेक्स्ट वीक से हम लोग इसमें ऐड करेंगे। हम लोग वीकली अपने इसको मतलब अपडेट करते हैं, बिकॉज मिड वीक करना हम लोग उसको मतलब सही नहीं मानते हैं किसी भी चीज को अपडेट करना, बिकॉज वीकली हम लोग ट्रैक करना वीकली स्ट्रेटजी। तो वो आपको ट्रैकिंग जो है आपको वो नेक्स्ट वीक से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक से आप इसमें भी दिखाओगे? ओके, इट्स अ न्यू जो आपको स्लाइड दिख रही है उसमें दिखाएंगे हम। तो ये सर अभी नया शुरू किया है निफ्टी, इट्स अ रीसेंट डिप्लॉयमेंट फॉर यू, बिकॉज़ आपका बैंक निफ्टी इज फ्रॉम 8 मार्च, आई वाज सीइंग समवेयर। सर बैंक निफ्टी नहीं, मेरा नॉर्मल जो जिप है इज फ्रॉम 8 मार्च। या दैट इज अ नॉर्मल जिप जो आपको मार्केट प्लेस पे दिख रहा है, जो भी मतलब मार्केट प्लेस पे हाई रैंकिंग के साथ है, जो जिप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दैट इज फ्रॉम 8 मार्च। जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है वो मैंने रिसेंटली अलग करा है। तो सर जो आपकी शीट में अभी जो था जिसमें 4% ड्रॉडाउन 63% का रिटर्न है, दैट इज 1 लाख कैपिटल, दैट टेक्स बैंक निफ्टी बोथ, वो कुछ भी ले रही है? यस, इट विल नॉट टेक बोथ एट द सेम टाइम, इट मे डिसाइड नॉट टू टेक। राइट, दैट्स व्हाई दैट 1 लाख कैपिटल इज देयर, बिकॉज़ निफ्टी का तो थोड़ा कम में भी हो जाएगा। तो अब बैंक निफ्टी हमारी स्ट्रेटजीज में ना आपका कैपिटल काफी बार खाली रहेगा। राइट, तभी हमने हेज का लाभ लिया है। वो थोड़ा हमारे खुद के नेचर के साथ भी है, हम लोग हमेशा ट्रेड नहीं करना चाहते। निफ्टी वाले का सर क्या कैपिटल रहेगा जो निफ्टी वाला जिप आएगा? 50,000। 50,000, ठीक है सर, बस ये पता करना है। थैंक यू सो मच। Anyone else? SBM, you have to unmute yourself before you ask a question. Okay. If no more questions, can we close this call? Okay. Finally. Shiva, I saw you first. I'll unmute you first and then we'll take a question from Rao Anil Kumar. Yes, Shiva. Yeah. My doubt is, can I use entire margin as pledged margin? Sir, so pledged margin, again, it's basically your trading margin, right? Yes. Now you have to check with your broker what it will allow you. It will allow you 50% of your pledged margin, or it wants you to give 50% cash. Anyways, most of the brokers are going toward 50-50 cash and pledged margin. So that you have to check with your broker. Yeah, they will allow 100%. There is no problem. I am using FIRES. Okay. So they allow for option selling. So you will also hedge, right? So they don't allow for option buying, right? Yeah. So you'll have to have cash over there. Okay. Whatever required cash for buying that option, I need to have that much. That's right. And for the drawdown as well, you will need to have cash over there. That's because fine. If you don't have your cash for the drawdown, then if there is a drawdown, it will basically deduct the cash. So you will not be able to trade again. So you have to make sure that even after that you are fulfilling the limits of the broker. Okay, got it. Okay, thank you. Mr. Rao Anil Kumar, Anil Yadav, Rao Anil Yadav. सर आई हैव अ क्वेरी। सर आपकी जो गूगल शीट है
उसमें जो हाँ आपने समराइज कर रखा है वो स्टार्टिंग उसी से, जैसे मैं ZI जिप की देख रहा था तो वो 24,000 से स्टार्ट कर रखा है, तो वो कैसे हाँ कर सर, रखा है मैं थोड़ा समझ हम नहीं लोग उस दिन से चेक कर रहे हैं जिस दिन से हम लोगों ने उसको लाइव करा था, बट हम लोग उसको पीछे डेटा भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, विल पुट इट आउट। क्योंकि मुझे समझ में नहीं, मेरे स्टार्टिंग 24,000 नहीं नहीं, से, वो हम या तो लोग आपने पीछे से डाल देंगे, कोई बात नहीं। उस दिन आपको 17 को आपको जो पीनल लिखा था वो 24,000 का, विल अपडेट दैट एंड विल सेंड इट टू यू। ओके ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं इसलिए पूछा। यही पूछा मैं। और सर ये जो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग है, तो बेटर टू डिप्लॉय निफ्टी मोरेक्स या फिर बोथ कॉम्बिनेशन? सर आपको वो चीज, आप सिंपल ये देखो, आप अपने ड्रॉडाउन और कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से देखो। अगर आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया, अपना ड्रॉडाउन मैनेज कर लिया, आप वो बोले मैं निफ्टी में लेके करूंगा या बैंक निफ्टी में लेके करूंगा, आपने अगर वो मैनेज कर लिया तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको विल गेट गुड रिटर्न। लेट्स लुक इन फ्रॉम अ ड्रॉडाउन पर्सपेक्टिव। ड्रॉडाउन विल बी द सेम, जो आपको उसको रखना है वो 20% ही रखोगे आप। ओके ओके, तो सर निफ्टी का कितना ड्रॉडाउन है? सर 20% रखो, मैंने बताया ना कि वो अगर उसका अभी ड्रॉडाउन 1% दिख रहा है तो उसको 1% नहीं रखना है हमको, हम लोगों को उसको वो रखना है कि अनलेस 6 महीने का डेटा आ जाए, देन कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि नहीं इतना रखेंगे। लेकिन अभी तो 1 महीने का डेटा भी नहीं है, 1.5 महीने का डेटा है जिप का, और इसका निफ्टी का तो हमारे पास 1 हफ्ते का डेटा है। ओके ओके ओके, बैकटेस्ट पे अगर हम लोगों ने एक रूल्स सेटअप करे थे कि बैकटेस्ट को हम लोग कैसे देखेंगे, किस चीज के लिए देखेंगे, उसमें हम लोग किस तरीके से हमारा कैपिटल एलोकेशन करेंगे, तो उन रूल्स के हिसाब से ऑल द डिस्कशन वी आर डूइंग इज अकॉर्डिंग टू दैट रूल, नथिंग एल्स। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर। संजीव जी, you can unmute yourself. Okay, Sanjeev ji. Yeah. Can you hear me now? Yes, I can hear you. आपने जो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपने ये बताया, आपने ये तो डिस्कस कर दिया कि पोजीशनल और दूसरे में आपको करना है। अगर पोर्टफोलियो लेट्स से कि मेरी अगर कैपिटल 20 लाख है, तो इंट्राडे और पोजीशनल में कैसे उसको डाइवर्सिफाई करें, उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा बताएं। सर वो आप हम लोगों ने बात करी, उसमें अगर आपका 20 लाख है और अगर आपको लग रहा है कि आप मीडियम रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर हो, उसके हिसाब से आप ये 70-30 का रेशियो या 80-20 का रेशियो कर लीजिए। इंट्राडे की जो भी आपके पास स्ट्रेटेजी है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, ठीक है ना। हम लोगों ने डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन डाली है, आप उसको कैटेगरी को आप पोजिशनल और इंट्राडे भी कर सकते हो। एक्चुअली इट मीन्स द सेम थिंग, नॉन डायरेक्शनल हम लोग जो कह रहे हैं वो इंट्राडे ही है और डायरेक्शनल जो है हमारी वो पोजिशनल ही है, तो इसलिए मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, राज पवन जी। Yeah, hi. Hi. So I joined your strategies like very recently, 2 दिन हुआ है बस, and so I started with ZIP, but now in the call it's being told that it will be split into Nifty and Bank Nifty separately. So my question is like the original one is still supported, right? I mean. So the original one is the main strategy. People said that they don't want the volatility of Nifty and Bank Nifty to come together. So it's like there's a right side and a left side. So we have cut this strategy in half. Okay. So someone says that I don't want to do Bank Nifty. I hate Bank Nifty. Bank Nifty have never made money. Okay. So they don't deploy Bank Nifty. They deploy only Nifty. But as our recommendation is, we believe that both the indices will stable each other out and give you a very smooth curve. That is our belief. We have done this thing. There's a mother strategy. We'll share that link again. You can go through that video. That mother strategy has always been on Nifty and Bank Nifty together. Okay. So do I have to deploy 2 strategies, Nifty and Bank Nifty, or the mother strategy? No, Zip is good enough. It is combined for both. Okay. Yeah. Okay. Yeah, that was my question. Thank you. Yeah. And just one follow-up. Yeah. So like with is it okay that I just use Zip alone, and do I have to complement with something else, or this alone is enough for a small time retailer? Sir, it is as per your capital. If you say that I have a capital of 2 lakhs, I want to do Zip, I will not guide you.
I have given you a ground rule that I believe is good, and that is how we should go about it. But if you want to take your risk, it's your money, your capital. I'll get the sharing. Up to you. Okay, yeah, got it. But I don't recommend that, and we are very clear about it. We don't recommend people to do FNO if they don't have 5 lakh rupees. I do have, but this is the last bit which I have allocated into Zip. That's why. Yeah, so you have other allocations, right? Yeah. No, that's fine. So then you can just put the other allocations, look at their drawdown, look at the drawdown that you have in Zip, and then accordingly you should decide that you want to go for Zip or not. You want to go for someone else, or you want to say that I will do only Zip Nifty, which is 50,000 capital. ठीक है, yeah, understood. Thank you. Chetan? Hi sir, I have a problem with margin. Like मेरे को ये नहीं समझ में आता, जैसे मैं फिनवाशा यूज करता हूँ, तो मेरे को जिप डिप्लॉय करना, तो मैंने पूरा कैश डाल दिया, बट वो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है उसमें। तो अब फिर क्या है कि क्वार्टरली सेटलमेंट होगा तो वापस मेरे बैंक में आ जाएगा, एंड देन वापस मेरे को डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ मतलब कोई प्रोसेस अगर आप बता पाए या कुछ आइडिया। इसमें तो ये रिलेटेड नहीं है, बट अगर पोजीशन हम लोग कैरी करके जाते हैं जिप में, तो आपको क्वार्टरली सेटलमेंट नहीं होगा अगर कैरी करके जा रहे हैं तो। और अगर नहीं कैरी करके जा रहे हैं, आपका सेटलमेंट हो गया, तो अगले दिन तो आप डाल ही सकते हो। हाँ, मतलब इसका कोई मैंने जैसे और मतलब यूट्यूब में वीडियोस ये सब देखे हैं, तो उसमें बोलते हैं फिनवाशा में लिक्विड बीज ले सकते हैं, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आती। अगर लिक्विड बीज में ले लेता हूँ तो फिनवाशा में शायद 50% वाला रूल एप्लीकेबल है ना। 100% कोलैटरल कंसीडर होगा, 50% कैश मार्जिन रखना ही पड़ेगा। लिक्विड बीज में आपका 100% कैश में कंसीडर होगा, उसमें वो 50-50 नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो मतलब मेरे को फिर अलग से कैश रखने का कुछ दरकार नहीं है? नहीं, थैंक यू सर। ड्रॉडाउन के लिए रखना पड़ेगा। एनीवन एल्स क्वेश्चंस? मुझे लग रहा है अभी स्ट्रेटेजीज के ऊपर ज्यादा हो रहा है, कैपिटल एलोकेशन पे कम हो रहा है। तो अगर कोई कैपिटल एलोकेशन पे है तो लेट्स टेक दैट, अदरवाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते रहते हैं। नो वन? यस शिवू? सर, ये कैपिटल एलोकेशन में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल कितना रेशियो में रहने का? सर वो ग्राउंड रूल है। अगर आप इंट्राडे तो हम लोग वैसे देखा जाए, इंट्राडे तो हम लोग बोल रहे हैं वो नॉन डायरेक्शनल ही है हमारे हिसाब से। तो हम लोग तो इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल ही करते हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे को पोजिशनल डायरेक्शनल जो है वो उसको पोजीशन में डालना है, आप उसको पोजीशन में डाल दो, आप उसके हिसाब से मैनेज कर लो उसको। बिकॉज पोजीशनल स्ट्रेटेजी और इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो है, दोनों का फर्क यही होता है ना कि वो कल कैरी करके जाएगा और कल उसका एडिशनल नुकसान हो सकता है। तो आप उसको वैसे कर दीजिए, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में। इंट्राडे इज जनरली व्हाट वी टॉक अबाउट, जो दिन में खत्म हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है जो दिन में खत्म हो जाती है, अच्छा रिटर्न देती है, डाल दीजिए उसको इंट्राडे में। नहीं सर, रेशियो कितना रहने का? सर रेशियो वही बताया ना सर, अगर आपने डायरेक्शन लगाया है इंट्राडे में, आपका ड्रॉडाउन जो कैलकुलेट हो रहा है उसमें आपका वो ठीक लग रहा है आपको ड्रॉडाउन के हिसाब से, तो पूरा दिन इंट्राडे में डायरेक्शन ही करो ना, अगर आपको डायरेक्शन अच्छा लग रहा है तो। जब होल पॉइंट हियर इज कि आप जो कैपिटल एक्सपोज कर रहे हो ओवरनाइट रिस्क पे, उसको आप लिमिट कर रहे हो, क्योंकि वो जो 20% ड्रॉडाउन है जनरली वो आपको किसी भी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में भी, इंट्राडे डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में भी एक दिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। Any more questions? It's been about 2 hours, and thanks a lot for all of you guys to join in the auspicious presence of our FII friends who have joined this morning.
I hope some of them are tracking our discussions as well. Right. So we'll end this call. Thank you. Thanks, Dipanjan. Thanks, Vikrant. Yep. Thank you. And thank you everyone for joining in. Thank you. Have a wonderful night ahead. Bye, bye, bye. Bye, everyone. Thank you.